all the estimated dignitaries and my fellow members in this National Chartered Accountants Conference 2022. To upscale our professional career and practice, we are vested with the sufficient knowledge. But somehow we lack to reap the maximum benefits of our technical knowledge. Likely Jaisa told that we all have the correct altitude and aptitude, but what we lack is the attitude. And to reap that with the maximum benefits, we have with us a speaker who has managed such a big institute, ICAI, CA Nilesh Vikamse, with his topic, Practice Management for CA Firms. I would like to request CA Rupin Pachigar, our past chairman of Surat branch, CA Dushyant Vitlani sir, and CA Arun Viradya sir to escort our speaker on the dais. A huge round of applause for our speaker. I would like to request CA Rupin Pachigar sir to felicitate us sir with flowers and memento. I request CA Dushyant sir to felicitate our speaker with memento. We have with us CA Rupin Pachigar sir, our past chairman of Surat branch, to share some words of wisdom from his professional journey. I would like to welcome CA Rupin Pachigar. Good morning, friends. Learned speaker of this morning, CA Nilesh Vikamse, worthy past president of ICAI, CA Dushyant Vitlani, secretary of Surat branch, CA Arun Viradya, and MOC, CA Pratika Kinservia. Other dignitaries of the dais, my professional colleague, ladies and gentlemen. On behalf of Surat branch, I extend my warm welcome, and it's my proud privilege to welcome all of you, and particularly our beloved past president, C.A. Nilesh Vikamse. At the outset, I would like to congratulate our dynamic chairman, Nikesh Kothari, and his entire team for organizing such a fine, such a wonderful conference at this juncture. And I'm very happy that their efforts has fulfilled their desire to be a successful branch. Well, ladies and gentlemen, I will begin with our past president started in Gujarati. I inspired to do it. And I'll begin with a poem of a very well-known Gujarati
poet Ramesh Parekh. Ramesh Parekh said, આ મન પાચમના મેળામાં સૌ જાત લઈને આવ્યા છે. આ મન પાચમના મેળામાં સૌ જાત લઈને આવ્યા છે. કોઈ આવ્યા છે સપનું લઈને, કોઈ રાત લઈને આવ્યા છે. કોઈ દોરાનું તૂટવું લાવ્યા, કોઈ ફુગ્ગાનું ફૂટવું લાવ્યા, કોઈ અંગત ફાડી ખાનારું એકાંત લઈને આવ્યા છે. આ મન પાચમના મેળામાં સૌ જાત લઈને આવ્યા છે. કોઈ આવ્યા છે સપનું લઈને, કોઈ રાત લઈને આવ્યા છે. Well, friends, all the person on this earth are having that dream. And they will have to have a dream if he wants to be a successful human being. But it's more so in case of a chartered accountant. Because we have passed the toughest examination of the world. And therefore, I am of the opinion that every chartered accountant desires to be a successful professional. It is bound to be. And the success comes after hard work. It requires very hard work. Then and then only a person can be successful. The word success comes at only one place before the work, and that is dictionary. So I am of the opinion that success is very much important for a chartered accountant, and you all are doing this practice since number of years. It is said by Longfellow, a well-known poet. He said, heights by great men reached and kept were not attained by sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upward in the night. The person who is ready to work 24 hours will definitely achieve the goal, will definitely reach to the destination. And that is possible if you continuously in this process of competition. Well, friends, you all know that this 21st century is a century of knowledge, information, but it is a century of competition. You will have to compete not with the person sitting beside you, but you will have to compete the person across the globe. And therefore, I am of the opinion that you must work hard to reach at the goal. And it is a continuous process. सफलता के बाद अल्प विराम होगा. There cannot be full point. हर सफलता के बाद थोड़ा आराम करो, एंजॉय करो. Then again you are in this रफ्तार. आप चलते रहो, तभी एक दिन ऐसा आएगा कि अब लोग आपको पहचान पाएंगे. He is a wonderful chartered accountant. And therefore, success is very important. And I believe that the success requires management. And there are three types of management for a chartered accountancy profession. One is the management of time, management of money and finance, and management of man. If you conquer all these three types of management, I'm sure that you will be able to reach at the top of the profession. And the most example of this management is our Speaker of the morning, C.A. Nilesh Vikamshe. He is going to deal with the subject, practice management for CA office and firm. We are lucky to have such a great leader of our profession and the past president of ICACA, C.A. Nilesh Vikamshe, as a speaker of this particular session. I'm sure that if you listen to him, you will get number of information, number of knowledge. And for that, we are grateful to the branch for inviting him to deliver a talk on this very important subject of practice management for CA office and the firm. Well, friends, I believe that you have to be in practice of success, practice of doing good works. Then and then you will reach at the top. एक मंत्र ध्यान में रखना. Sow an action, you reap habit. Sow a habit, you reap character. Sow a character, and you reap destiny. Destiny is possible. It is always said that destiny is not in our hand. It's in the hand of God. But I am of the opinion that we, as a chartered accountant, with numerous
efforts can reach and change our destiny. It is possible for you to change your destiny. It is possible for you to decide your destiny, and that is possible if only. I will conclude with a शायरी. सफलता इन्हीं को मिलती है जिसके सपने में जान होती है. सफलता उन्हीं को मिलती है जिसके सपने में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. ये उड़ान करने की ताकत आप में है. It is said that Earth's great treasure lies in human personality, and you have that great treasure within you. So you have to find out the treasure within you, and you will reach to the destiny. You will reach to the future of a profession. I wish you all the success, and I am sure that you are going to be benefited with the wisdom and words of our beloved past president and very fine leader of our profession, C. Nilesh Vikamsi. Thank you. Thank you very much. Without taking a minute more, I would like to invite our speaker CA Nilesh Vikamse sir, to begin with the session which we all were waiting eagerly. Once again, a very good morning. We are starting almost by the time I was supposed to close the session. So, Guru, pardon me, I'm told your flight is slightly evening, and today, luckily, there are only 3 sessions. So, I'll take my time, try to rush up a bit, but how do we do the slide movements? Are you able to see these slides? Friends, the topic which is given to me is practice management of CA office firms. This is a topic which is very close to my heart. I've been speaking on this topic from 1996, and you'll say it is like that singer, who once more. But I kept up evolving, kept on getting experiences from my friends, our own firm. Mine is an 85-year-old firm. And I'm happy to say that we are transformed, and whatever I'm going to speak, substantial part of it is post-implementation. Khali, it is not preaching you something to do, we have implemented it. The proof of the cake is in eating. So my request to you is, I'll be speaking of lot many ideas. Typically, जैसे होता है कोई भी, we go to any session, we listen, अरे बहुत अच्छा speaker था. But we go out and we are same. We get back into our routine. We forget everything. So then the purpose of me coming to Surat, despite a big weekend, my family is going out for Raksha Bandhan to a different city, and I'm going to travel from here, will not be worth it if you are not going to implement. I'm not saying you implement everything. Whatever you like, whatever you appreciate, whatever you feel is what I'm speaking makes sense, please implement. बाकी नहीं तो सुनोगे, बाहर जाओगे, हाँ बहुत अच्छा बोला, और अपन अपने ऑफिस में जाके वही के वही, तो मतलब नहीं रहेगा. तो जो आपको ठीक लगे, whatever you feel is what I'm speaking makes sense, please implement. हाँ, implement कोई चीज़ शॉर्ट टर्म होगी, कोई मीडियम होगी, कोई लॉन्ग टर्म होगी, पर जो मैं बोलने वाला हूँ सब तजुर्बे से बोलने वाला हूँ. मैं खाली प्रीच नहीं कर रहा हूँ. 90% मेरा खुद का तजुर्बा है, मेरे ऑफिस का तजुर्बा है, 5-10% दोस्तों का तजुर्बा है, experience of my friends, and what I've seen at the practice level being a president also. So a lot of these things I'm going to speak on. So what is my session going to context of? Okay, what is the current position of our practice? Some of you may have heard me, on online sessions during the COVID, or maybe I don't know. So something might be of repeat to you. Please pardon if you feel it's a repetition. Some statistics around how many people are in practice from the institute.
I will not be speaking on practice versus industry. I believe 90 or 95% of people sitting here are from practice. So the comparison that's mainly for youngsters. They can look at the slides later on. What are the challenges we are facing in the practice? What are the practice management strategies? We talk of how do we increase our practice, how do we increase our clientele, and how do we charge fees. I think it's a problem area for all the chartered accountants. We don't know how to charge fees. It's my very conscious belief that अपने fees charge करने नहीं आती है, unlike lawyers and all. What are the ingredients to successful practice? What should be the growth strategies? I may not speak so much on specialization and new areas because again that's a different topic. But I'll try to cover as much as I can. So what is the current position of our practice? Do you all agree that the risks have gone up substantially or no? तो जो ऑडिट कर रहा है ऑडिट में रिस्क बढ़ गया है, whether it is NFRA for those listed companies and large companies, whether it is in income tax, whether you're doing tax audit, GST audit तो चली गया है, even return filing में there are penalties now, and client expect you GST में कुछ delay हो गया, तो in Bombay I have seen some of my friends paying penalties on behalf of clients because of delay at their side. अपने यहाँ typically होता है last minute client आते हैं, अपना कभी उनको ना बोलते नहीं है और फिर काम होता नहीं है बिकॉज टिपिकली लास्ट मिनट कोई चैलेंज आ गया, पोर्टल में चैलेंज आ गया, इसमें आ गया, तो पेनल्टी आई हैव सीन some of my friends paying the penalties on behalf of the clients, and which is very very ridiculous in my view. Why should we be paying penalty of our clients for their delay? Several scams have surfaced where CAs are found involved or presumed to be involved. आज जो CA नहीं भी होगा तो CA का नाम आ जाता है कि CA involved है, तो ये क्या पूरे प्रोफेशन को एक खराब नाम लेके आ रहा है. रेगुलेटर्स की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया. आई हैव बीन एट द हेल्म, आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद सेबी, विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, विद RBI, with during my term in the council as a president, and even now I'm in some SEBI committees, and I'm seeing the way NFRA is coming out with reports. The expectation have reached the moon. कि उनको लग रहा है, see, we are part of the society. What I mentioned about Surat and the parallel economy and all, but they expect that CS should do no wrong, and that's a reality. And unfortunately, when I was the helm and was interacting with the bureaucrats, what my friend, the investment banker told, I think that is the impression with the bureaucrats carry. The reason why the laws are coming the way it is they feel it is the CAs who are advising the client to do wrong things. And this is the topmost bureaucracy I'm talking of, the PMO's bureaucracy. Very bad image of CAs. Let me be very candid. They got कि CA लोग गलत ही advise करते हैं. The government wants, the bureaucracy wants that we advise rightly. कि सब लोग tax भरे, जो सही है वही accounts में दिखाएं, true and fair view, सही GST भरे, सही income tax भरे, जो भी कायदे हैं. The feedback they are getting from their own class, whether it is politician, whether it is bureaucrats, whether it is businessmen, कि CA लोग हमको बोलते नहीं भरने का, and which in my view is bullshit. So the moment we realize ये क्यों ऐसे impression हुआ है, why, I think it's an introspection for all of us. We need to change. We need to tell our clients to do the right things and not do the right, and it's in their own interest. I don't know how आप लोगों ने कितने लोगों ने NFRA के order देखे. There are 2 orders which have come: audit quality AQRR, audit quality reporting review reports, and I think financial reporting quality review FRQR. कितने लोगों ने अपने order देखे वो? Just by raise of hands. I think किसी ने नहीं. यहाँ पे I think बहुत कम लोग लिस्टेड कंपनी देख रहे होंगे. मैं अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, एक कोई भी ऑडिट रिपोर्ट आप ले लो, AQRR, ILFS के हुए काफ़ी सारे, एक JP ग्रुप का हुआ है, 5-6 ILFS के हुए हैं, और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू है वो एक PSU का, कुद्रेमुख आयरन, और 2-3 कंपनियों का फाइनेंशियल रिव्यू है, और 6-7 ऑडिट फर्म्स का. वो उठा के एक सैम्पल रिपोर्ट खाली आप देख लो. I don't know how many of us over here are following the standards of auditing, in the sense accounting standard follow करते हैं कि client में accounting standard follow हुए कि नहीं, कि Ind AS follow हुआ कि नहीं, but auditing जो standard documentation आपके खुद के आप audit करते हो उसकी document ठीक है कि नहीं है, वो कितने, मेरे हिसाब से I am also a mid-sized firm, we also evolved from a small firm to a mid-sized firm, and I can tell you अपने वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के जैसे हैं, we know the nubs of the client. बट आपके फाइल में कुछ नहीं मिलेगा, आपके सब दिमाग में होगा बट फाइल में कुछ नहीं मिला आपके. मैं फाइल उठाऊंगा आपने ऑडिट कैसे किया है, मैं अभी आपके ऑफिस में सरप्राइज चेक करूँ
तो फाइल में कुछ नहीं मिलेगा, आपके दिमाग में होगा, आप क्लाइंट का सब चिट्ठा हिस्ट्री बता दोगे और आपके मतलब ये गलत है, वो गलत है, ये सही है, ठीक है, जो भी है, पर वो अभी चलेगा नहीं। आज NFRA का ऑर्डर देखो, दे आर एक्सपेक्टिंग द फाइल शुड बी completely uploaded technically to NFRA for the review, the audit file, or without any interpersonal, they'll independently review. The file has to be self-speaking. नॉर्मली हमारे पे पीयर रिव्यू आते हैं तो क्या होता है, पीयर रिव्यू के लिए अपने लोग आते हैं, अपने ऑफिस में बैठते हैं, कुछ भी इशू है तो अपन बात करते हैं, कुछ दिखा देते हैं। आज समझो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, फटाफट अपने लैपटॉप पे या सिस्टम पे जाके। NFRA में ऐसे कुछ नहीं, आप फाइल भेज दो, आप अलग से देखेंगे, अलग सेव करेंगे। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, उनका एक्सपेक्टेशन है ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, आप लाइन बाय लाइन कंप्लायंस करो। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ILFS में जो गलत हुआ उसका अपनी मतलब नहीं, अपने को तो ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन कैसे करने हैं। तो उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि आज समझो एक चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, एक पर्टिकुलर चीज़, और मैंने एक प्रोफेशनल जजमेंट लिया है एप्लीकेबल नहीं, उसका मैं डॉक्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ, दे से इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आप ये स्टैंडर्ड में ये पैराग्राफ है, ये लाइन है, नॉट एप्लीकेबल, आप वो भी डॉक्यूमेंट करो। आप वहाँ पे ये पैराग्राफ, ये लाइन के नॉट पूरा, इट इज़ बिकमिंग नाउ फ्रॉम completely documentation oriented. That is expect. This is NFRA is the authority which has come in and this will flow down. आप बोलोगे मेरे को क्या इससे मतलब है, मैं लिस्टेड कंपनी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ प्राइवेट कंपनीज करता हूँ, टैक्स ऑडिट करता हूँ, बट ये जो थॉट है विल कम डाउन। सो बेटर यू गेट इक्विप्ड योर सेल्फ अर्ली एंड डू इट। एंड मेरा एक बहुत सीरियस सुझाव है आप लोगों के लिए, आप लोग कितने लोगों ने पीयर रिव्यू करवाया है यहाँ पे? थोड़े बहुत हाथ दिख रहे हैं। जिसने नहीं करवाया है उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके डॉक्यूमेंटेशन ठीक करके, कोई भी दोस्त हो, कोई बड़ी फर्म में आपका दोस्त हो, कोई जो ऑडिट डॉक्यूमेंट करते हैं उनसे आप करवा लो। क्या क्या नहीं, जैसे लेटर ऑफ एंगेजमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर, जो भी चीज़ चाहिए वो सब कुछ है कि नहीं है, और नहीं है तो करा के एक प्लीज़ स्टार्ट इन दैट डायरेक्शन। आप काम तो करते हो पर काम दिखना चाहिए। आई वांट 2 थिंग्स। अब आप अपना काम दिखता नहीं है आपने जो किया, नहीं तो आप ऐसे ही साइन कर लेते हो, अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहा आपके पास, आपने ऐसे ही साइन कर लिया कुछ देखे बिना, दैट विल बी दी एलिगेशन अगेंस्ट यू इफ यू डोंट हैव। और तो प्लीज गेट योरसेल्फ पीयर रिव्यूड बाय समबडी हु इज नॉलेजेबल, फ्रेंडली पीयर रिव्यू। भले इंस्टीट्यूट में आप रिपोर्ट करो नहीं करो, आपके खुद के अच्छे के लिए, क्योंकि आगे जाके बढ़ने वाला है। पेनल्टीज, रेगुलेटरी एक्शन बहुत बढ़ गया है सीएस के सामने। एक तो आप देख रहे हो, वेदर इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वेदर इट इज सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, CBI, कुछ भी गलत हुआ क्लाइंट में सबसे पहले CA के पास, वो तो एक बात है। आपको पता है इंस्टीट्यूट में भी डिसिप्लिनरी केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इन माई व्यू इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म वन ऑफ द बेस्ट अमंग्स्ट ऑल द प्रोफेशंस। अभी करंटली पेंडेंसी 2-3 साल की है, उस अच्छी है, उसके लिए ज़्यादा केस आ रहे हैं कि लोगों को मालूम है यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, मेरे को CA ने कुछ गलत काम किया, मैं कंप्लेन करूँगा, कुछ ना कुछ उसके सामने। और वॉट इज़ अगेन अ वार्निंग फॉर पीपल इन सूरत इज़, आपको पता है 99% ऑफ द, आप बोलते हैं NFRA नहीं है, ठीक है NFRA देखेगा बड़ी कंपनियों का, बट 90% ऑफ द केसेस जो डिस्प्यूट, किस टाइप के केसेस हैं? एक पार्टनरशिप फॉर्म है, 2 पार्टनर झगड़ते हैं, फैमिली पार्टनर्स हो गया, आउटसाइड पार्टनर हो, सबसे पहले कंप्लेंट इंस्टीट्यूट में करते हैं, उनका बाद में झगड़ा सुलझ जाता है जो भी मीडिएशन आर्बिट्रेशन करके, बट इंस्टीट्यूट में एक टाइम कोई चीज चले गई वो विड्रॉ नहीं हो सकती। भले वो पार्टनर ने विड्रॉ कर ली कंप्लेंट, जो बिजनेसमैन ने, बट वहाँ पे इट विल गो टू अ लॉजिकल एंड। सो दैट इज वन पार्ट। सेकेंड, आप एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऑडिटर हो, बॉम्बे में आए, यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी कहते पता नहीं, हाउसिंग सोसाइटी में ग्रुप्स है, क्लब है, समझो क्लब के अंदर ग्रुप्स होते हैं हाउसिंग सोसाइटी में, उसमें झगड़ा होता है, फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑडिटर सबसे पहले। तो इस टाइप के केस, आज हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो रहा है, वो मैटर भी वहाँ पे जा रहा है, उसके जो CA उन लोग दोनों के। सो दीज आर द केसेस व्हिच आर गोइंग 90%। तो और जो आपको लगता है ये तो मेरा प्राइवेट क्लाइंट है, क्या करेगा, जब झगड़ा होता है तभी वो कोई देखते नहीं है, तब तक आप फैमिली मेंबर हो उनके। ये कंप्लेन करने आएगी तभी कोई फैमिली मेंबर नहीं रहेगा। आप नॉर्मली रहता है ना, ये तो आप तो हमारे फैमिली के जैसे हो, दैट्स व्हाट द फीडबैक ऑफ द क्लाइंट इज। बट द मोमेंट देयर इज अ प्रॉब्लम इंटर से बिटवीन देम, द फर्स्ट स्केपगोट इज दी, और आप उसके उनका मुंह देख के आप कभी कोई कुछ चीज़ आपने एकोमोडेट कर दी, कुछ कर दी, वही चीज़ सबसे पहले आपको वो लोग, आपने कुछ भी गलत प्रेजेंटेशन किया या कुछ भी गलत किया उसके अंदर, वो पार्टनर्स को तो पता ही है। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच विल देखे ये गलत है, उनको पता है क्या गलत है, और वो आपके सामने एक्शन लेंगे। और फिर इंस्टीट्यूट कुछ कर ही नहीं सकती। डिसिप्लिनरी कमेटी में 3 गवर्नमेंट नॉमिनीज हैं, 2 काउंसिल मेंबर है, 3 गवर्नमेंट नॉमिनीज है, और अभी नाउ चेयरमैन ऑल्सो विल बी अ गवर्नमेंट नॉमिनी।
तो इट इज़ इम्पॉसिबल, इट्स अ गॉन केस मतलब. सो इसलिए मैं दोबारा बोलता हूँ, गलत करने के लिए सोचना, वी आर वेरी वेरी वल्नरेबल, नॉट ओनली गवर्नमेंट एजेंसीज बट इवन इंस्टीट्यूट डिसीजन मैकेनिज्म, एंड बढ़ते जा रहा है. ई गवर्नेंस हो रहा है सब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द प्रैक्टिस. पहले फिजिकल था तो लोग को आना पड़ता था, देखना पड़ता था, अभी तो काफ़ी सारी चीज़ खुद भी कर लेते हैं. टेक्नोलॉजी का बहुत इंपैक्ट आ रहा है सभी पे, क्लाइंट्स पे तो आ ही रहा. अपने पेपर ने अभी बात की मैंने कि AIS कल उठ के पूरा रिटर्न भर के आ जाएगा आपका, आफ्टर अ ईयर और 2 years you'll get the whole. तो then what is the, why does somebody need a chartered accountant if you can, you know, the CBDT खुद आपको रिटर्न भर के दे देगी, इंफॉर्मेशन पूरा सब जगह अवेलेबल है. तो ये एक है, सभी चीज़ों में टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट आ रहा है. अकाउंटिंग में जो अभी यहाँ पे एल्डर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, उनको पता है हम लोग सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग खुद हाथ से लिखते थे. फिर टैली आया तो टैली में चले गया, तो अपनी स्किल्स कम यूज़ होने लगी, ऑटोमेटिक और ट्रायल बैलेंस चलेगा ऑटोमेटिक हो जाता था. अब ये लेवल है कि रोबोट्स से डू डेटा एंट्री की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. बॉट्स एंड रोबोट्स आर डूइंग रिकन्सिलेशंस, अकाउंटिंग, डायरेक्ट मशीन लर्निंग से अकाउंटिंग खुद हो रहा है. आपका समझो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, अपने आप वो पकड़ के इट विल गेट डेबिट अकाउंटेड फॉर बाय मशीन, नॉट बाय पीपल. सो डेटा एंट्री का काम नहीं, चेकर का शायद रहेगा. क्या समझो इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट है, भूल से एक्सपेंस में चले गया हो, उसको डिपॉजिट में शिफ्ट करना हो, टू दैट एक्सटेंट. सो एक एक एक्टिविटी अपनी करंट जो कर रहे हो कम होते जा रही है. सेम वे अपना क्या कर रहे हैं ऑडिट का, ऑडिटिंग में क्या कर रहे हैं, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. टैक्स ऑडिट में क्या, कंप्लायंस विद टैक्स लॉज. GST ऑडिट जब भी था तभी कंप्लायंस विद GST लॉज. ये पूरा काम 5 या 10 साल के अंदर टेक्नोलॉजी करने लग जाएगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बढ़ रहा है कि टाइम इज नॉट, एटलीस्ट इन मेरे तो उसमें लाइफ टाइम में देखूंगा कि टेक्नोलॉजी. तो क्या होगा, जो भी करंट अपन जो कर रहे हैं एश्योरेंस फंक्शन, दैट एश्योरेंस फंक्शन मे और मे नॉट करंट वे. फॉरेंसिक ऑडिट रहेगा, फॉरेंसिक ऑडिट कुड बिकम द न्यू नॉर्म ऑफ द होल ऑडिट दिस थिंग. द करंट ऑडिट व्हाट वी आर डूइंग मे नॉट सर्वाइव, इट्स लाइक अ डायनासोर, एक्सटिंक्ट हो जाएगा 5 साल 10 साल 15 साल, टाइम मेरे को नहीं पता, पर मेरे लाइफ टाइम में हो जाएगा. ऐसे मेरे को पता है कि वो जो अपन अभी सर्टिफाइंग ट्रू एंड फेयर व्यू मे नॉट, दैट टेक्नोलॉजी विल डू. तो वी नीड टू चेंज. व्हाई आई एम हाईलाइटिंग ऑल दोस थिंग, वी नीड टू चेंज. दूसरे एक अभी द करंट पोजिशन इज अमेंडमेंट्स बहुत हो रहे हैं, वेदर इट्स GST, कंपनीज एक्ट. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रैक्टिसिंग कंपनी लॉ. यहाँ पे कौन कितने लोग ROC वगैरह काम करते हैं? मैं कंपनीज एक्ट का एक्सपर्ट था पुराने एक्ट में 1956 में. आज मेरे को कोई पूछेगा मैं एक भी जवाब नहीं देता हूँ क्लाइंट को. क्यों? इतना बदलाव हो रहा है. दी रूल्स ऐसे लाइक अ ड्रॉप ऑफ द हेड दे चेंज. पहले इनिशियल फर्स्ट जो ड्राफ्ट रूल है 2013 के अमेंडमेंट के बाद में, दैट वाज आफ्टर पब्लिक डिस्क्लोजर. अभी कोई पब्लिक डिस्क्लोजर, कोई कमेंट्स नहीं है. आज कोई गलत उन्होंने देखा, गवर्नमेंट ने कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, इमीडिएटली रूल्स चेंज होता है, अपने को पता ही नहीं है. एंड वी आर नॉट टेकिंग, बिकॉज वी आर डूइंग ऑडिट, वी आर डूइंग टैक्स, वी आर डूइंग GST, टाइम ही नहीं हो देखने का. तो जो भी कर रहा है कंपनी लॉ का काम, मेरा अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज बी अपडेटेड. द चेंजेस आर टू मेनी. बहुत चेंजेस हो रहे हैं. बैंक्रप्सी कोड आ रहा है, इन डेज में बहुत चेंजेस हो रहे हैं. वैल्यूएशंस, तो अपने वी हैव टू बी ऑन आवर टोज. फिर कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिस के पूरे द वे ऑफ डूइंग प्रैक्टिस. रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. फ्रेंड्स, आई वाज अ वोटरी अगेंस्ट रोटेशन ऑडिट. जब 2013 में रोटेशन आया था मैं अगेंस्ट में था, बट लेट मी टेल यू नाउ आई एम ऑल फॉर रोटेशन. मैं आई एम अ डायरेक्टर इन मेनी कंपनीज. आई हैव बिकम ऑडिटर इन मेनी कंपनीज इन सक्सेशन somebody else, and I am a strong believer rotation is good from a governance perspective. और जो सही है वो होने वाला है. तो आप बोलते हैं प्राइवेट कंपनी से रोटेशन नहीं है. यहाँ पे अगर सक्सेसफुल हो गया, और अगर लिस्टेड कंपनीज वगैरह में, अगेन टाइम इज नॉट फार अवे, देयर कुड बी रोटेशन इन प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो, पॉसिबली टैक्स ऑडिट ऑल्सो. और आप थोड़ी बहुत तिगड़मबाजी कर सकते हो अपनी एसोसिएट फर्म यू, बट दैट इज ओनली लिमिटेड, यू कांट. बड़ा काम नहीं कर सकते हो आप वो तिगड़मबाजी में. छोटा काम बहुत कर सकोगे कि भाई एसोसिएट फर्म कर ली, ये कर ली. बट रोटेशन अगेन हैज़ ब्रॉट इन लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी. वी हैव सीन लॉट ऑफ फर्म्स रिजाइनिंग. आज समझो मैं कहीं ऑडिट कर रहा हूँ और दूसरी कोई फर्म आई, दे से अरे इन्होंने तो बहुत ज़्यादा रिस्क लिए हुए हैं, द अर्लियर फर्म, मेरे को नहीं करना, मैं तो छोड़ देता, मैं रिजाइन कर रहा हूँ. सेम वे मैं कहीं और किसको सक्सीड कर रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट द रिस्क विद द अर्लियर फर्म इज टेकन इन सॉर्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द ट्रू एंड फेयर व्यू. सो आई बिलीव रोटेशन इज गुड इन द अल्टीमेट गवर्नेंस परस्पेक्टिव. यूडिन, वैल्यूएशन रूल्स, टेक्नोलॉजी अपन ने बात की. एक और बहुत बड़ा चेंज आ रहा है. आपने अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू लुक एट दिस AQRR ऑफ द NFRA. उनका सबसे पहला स्टेटमेंट है
कि जितनी ये बड़ी फर्म्स है जिन्होंने ऑडिट किया LFS का, दे वर नॉट एलिजिबल टू डू द ऑडिट ऑफ दैट फर्म. टॉप मोस्ट फर्म्स ऑफ आवर कंट्री, उनकी वो इंडिपेंडेंट थे ही नहीं. क्यों? कि उनकी कोई सिस्टर कंपनी बहुत ज़्यादा कंसल्टिंग का काम कर रही थी, एंड दैट इंक्लूड्स टैक्स कंसल्टिंग ऑल्सो. अपन प्राइवेट कंपनी में क्या कर रहे हैं, मैं ऑडिटर भी हूँ, मैं टैक्स एडवाइजर में सब कुछ हूँ, एंड दैट्स राइटली सो. इंस्टीट्यूट भी वही व्यू ले रही कि छोटे कंपनियों में इतना इंडिपेंडेंस की जरूरत नहीं है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस विल गो अप फॉर द क्लाइंट. But the way regulators seeing, the way the regulators seen what's happening in the listed companies, it will not be far away. There could be a possibility, though institute is defending a lot, कि मीडियम और छोटे कंपनी में अलग अलग होने की जरूरत नहीं है, खाली बड़े कंपनियों में अलग करो आप. लिस्टेड, द मोमेंट यू गेट टू लिस्टेड कंपनी, प्लीज डोंट डू एवरीथिंग, इवन इन योर एसोसिएट फर्म्स. बट इफ यू आर इन अ प्राइवेट कंपनी, सो सेग्रीगेशन ऑफ ऑडिट, और वर्ल्ड ओवर, खाली इंडिया में नहीं, यूके में ये हो रहा है. वहाँ पे तो दे आर गोइंग टू ब्रेक दी फर्म्स. जितने जो बड़ी फर्म्स हैं, दे से इफ यू आर अ ऑडिट फर्म यू कैन डू कंसल्टिंग वर्क एट ऑल. सो दे आर गोइंग टू ब्रेक दी फर्म्स, एंड आई थिंक वन ऑफ द लार्ज फर्म्स हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दे विल ब्रेक द कंसल्टिंग फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस. और ऑलवेज एक जो जॉइंट ऑडिट आने वाले कंपनी लॉ कमेटी का एक रिपोर्ट है, जिसमें अतुल भाई वॉज ऑल्सो मेंबर अर्लियर, कि जॉइंट ऑडिट जितनी बड़ी कंपनी होगी, द मोमेंट जॉइंट ऑडिट कम्स, यू नो, अभी आप बड़े कंपनियों में स्टार्ट होगा, अभी छोटे कंपनियों में नहीं होगा, दैट इज़ अ रिकमेंडेशन. सो दी लेवल ऑफ मोर पीपल, तो एक जन को जो अगर एकोमोडेट कोई कर रहा है किसी को, होगा नहीं. एंड दी ऑलवेज द चैलेंज ऑफ जनरल प्रैक्टिस वर्सेस स्पेशलाइजेशन, कि मैं जनरल प्रैक्टिशनर हो या स्पेशलाइजेशन, उस पर थोड़े स्लाइड्स हैं, विल सी इफ वी गेट टाइम, विल सी. तो हो क्या रहा है अभी प्रोफेशनल स्पेक्ट्रम में चेंज. कंप्लायंस बेस्ड प्रैक्टिस इज फेसिंग सीवियर यू नो कॉम्पिटिशन, जैसे अपने जो रेगुलर ऑडिट, टैक्स, GST में, वेरस कंसल्टिंग में अपॉर्चुनिटी बढ़ते जा रही है. ये डिस्ट्रिब्यूट टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग है और कोई भी कंसल्टिंग है. पावर शिफ्ट टू द टेक सेवी, जो भी टेक सेवी है उसकी जो प्रैक्टिस भी उस तरफ शिफ्ट हुई. मैं सीनियर हूँ और मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल टेक्नोलॉजी, द वर्क इज शिफ्टिंग नाउ टू पीपल आर मोर टेक सेवी. सो दैट वी नीड टू बी यू नो गियर्ड अप. पहले अपन डिक्टेशन देते थे, फाइलिंग, पेपर वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव, पर्सनल मीटिंग्स और कॉफ़ी मोर, सब अपन ने देखा कोविड में क्या हुआ है. ये सब चेंज हो रहा है अभी. जो मिड साइज फर्म्स है वो बहुत ही डायलेमा में है, कि वो बड़ी है निम्बल होने के लिए, और मतलब बहुत छोटी है इन्वेस्टमेंट करने के, मेरे को टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है और सब सारी चीज़ें करना है. सो बहुत दुविधा है. मिड साइज फर्म्स आर इन लॉट ऑफ यू नो चैलेंजेस. द मोनोपोलीज आर बीइंग थ्रेटन्ड. अपनी जो ऑडिट मोनोपोली, GST मोनोपोली, ये मोनोपोली, टैक्स की, ऑल दिस आर बीइंग थ्रेटन्ड बाय द रेगुलेटर्स. मैनेजमेंट और क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन बढ़ गए. आज आप समझो, बोलोगे कि मैं किसी 2-3 पीढ़ी से जुड़ा हुआ हूँ कोई पर्टिकुलर ग्रुप से, तो सीनियर्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे. और जो यंगस्टर्स हैं जो फॉरेन से पढ़ के आए, MBA करके आए, बॉस्टन से, हार्वर्ड से, इधर से, दे मे नॉट डिपेंड ऑन योर रिलेशनशिप. सो एंड देयर एक्सपेक्टेशंस आर जस्ट ह्यूज, कि आप चार्टर्ड अकाउंट देयर एक्सपेक्टेशन, तो यू नीड टू बी पार्ट ऑफ दैट चेंज. अगर आप ही जो एग्जिस्टिंग तरह से काम कर रहे हो, और नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट एक्सेप्ट यू इन द सेम फैमिली ऑफ द प्रोमोटर्स. अपन ने देखा गवर्नमेंट किस तरह जा रही है, आपको ये सब पता है, मैं जो बोलने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू, द डायरेक्शन इज वेरी क्लियर. अगेन एज अ वार्निंग फ्रॉम सूरत, फ्रॉम द पैरेलल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव. पहले स्टार्ट हुआ जनधन, फिर आधार, जो जैम बोलते हैं ना, जनधन, आधार एंड मोबिलिटी, दिस इटसेल्फ इज. उसके बाद में डीमोनेटाइजेशन आया, अपना इनकम टैक्स स्कीम, कैश ट्रांजैक्शन के रिफॉर्म्स. MCA ने 3 या 4 लाख कंपनी, एग्जैक्ट नंबर कीप्स ऑन वेरिंग, स्ट्राइक ऑफ कर दी, जो शेल कंपनी उनके हिसाब से थी. मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी ट्रांजैक्शन का एक्ट आया है. बैंक्स मर्ज हो रही है. पहले अपन इतने डिपेंडेंट थे बैंक ऑडिट पे, सब एवरीबडी इज यू नो, आप सोचो इतने बैंक्स मर्ज हो गए हैं, द नंबर ऑफ ब्रांचेस आर गॉन डाउन, और अपने CA बढ़ते जा रहे हैं. सो बैंक ऑडिट का जो चार्म था, नाउ इज गोइंग आउट, एंड यू नो मोर सप्लाई ऑफ CAs देन डिमांड इन द बैंकिंग सेक्टर फॉर द ब्रांच ऑडिट्स और वॉट एवर ऑडिट्स. रेरा हैज कम. तो रियल एस्टेट में जो गंद थी, जो बिल्डर लोग, मतलब तो रेरा आ गया है, विच इज़ यू नो ट्राइंग टू रेगुलेट द रियल एस्टेट. GST तो आपको पता ही है, एंड फाइनली आत्मनिर्भर भारत में काफ़ी सारी स्कीम्स है. तो दिस इंडिकेट्स द गवर्नमेंट डायरेक्शन कि दे वांट टू क्लीन अप द सिस्टम. द करंट लीडर ऑफ आवर नेशन ऑनरेबल मोदी जी एंड द टाइम्स, उनको क्लियर मैंडेट है कि सफाई करो आप. दे डोंट केयर अ डैम. उसमें आपको तकलीफ हो रही, किसको तकलीफ है, उनको कोई पड़ी नहीं है. बिजनेसमैन को तकलीफ हो रही है, दे डोंट केयर.
दे वांट सफाई, स्वच्छ भारत अभियान, बिजनेस में भी स्वच्छ भारत अभियान उनको करना है। तो ये अपने को मैसेज जब तक क्लियर नहीं होगा, तो आप जो कर रहे हो और जो क्लाइंट्स को करवा रहे हो या एडवाइस कर रहे हो, आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर द डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। मैं ये इसलिए आपको ये सब पता है, बट आप एक एक लाइन बाय लाइन देखो कहाँ कहाँ जा रहा है, वेयर द गवर्नमेंट इज गोइंग, यू नीड टू अलाइन। सम स्टेटिस्टिक्स विल सी, ये जस्ट ब्रॉड है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। समवेयर इन 2003, मैं 2004 में लेता हूँ, वी 56% पीपल इन प्रैक्टिस, 44% इन इंडस्ट्री। 3 वाला में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है डेटा में, मैंने एनुअल रिपोर्ट से लिया इंस्टीट्यूट के, और आज के तारीख में देखो आप 42% इन प्रैक्टिस एंड 58% इन इंडस्ट्री। और ये मैं नंबर दे रहा हूँ जो इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड पे है। ऐसे और लोग होंगे 30 या 40 हज़ार मेंबर्स जो मेंबर नहीं हो, जो इंडस्ट्री में है, जिन्होंने मेंबरशिप छोड़ दी है। तो रेशियो इज मच वर्स देन व्हाट, दिस इज एज पर द ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। व्हाट एंड ओनली थिंग आप बाद में देख लेना, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज when the industry is doing well, say up to 2008, lot of flow of people into the industry. When industry is not doing well, there is a lot of influx in the practice. But the moment abhi jaise India is going to be a growth story, we heard now India China +1 ye wo, I am very clear in next 5 to 10 years is India is going to do very well as a country. उससे क्या होगा, बीच में अभी लास्ट 10-15 साल से हार्डली एनी न्यू ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हुए हैं, बहुत कम। अब बड़े बड़े स्टील के प्लांट, सीमेंट के प्लांट, ये जो भी बोलो, बहुत कम हुए हैं। बिकॉज जैसे मंदी का माहौल था 2 साल पहले, कोविड के पहले, अब वो माहौल चेंज हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में ये है कि चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो दे वांट टू डी रिस्क। वो डी रिस्किंग में वन ऑफ द कंट्रीज विच विल बी गेनिंग विल बी इंडिया, अपार्ट फ्रॉम वियतनाम, मलेशिया, फिलीपाइंस, थाईलैंड, वो सब छोड़ो, इंडिया ऑल्सो विल गोइंग टू गेन। और उसमें होगा क्या, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग एक कंपनी लिस्ट होने वाली इसका काम कर रहे हैं। पहले 2 चार्टर्ड अकाउंट लोग रिटेनर थे, हस्बैंड वाइफ टीम, रिटेनर एडवाइजर टू दैट कंपनी। अभी लिस्टिंग कर रहे हैं, एक एक्सपीरियंस सीएफओ आ गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेप्यूटी सीएफओ आ गया, और एक अकाउंट्स में एक बंदा सीए फुल टाइम उन्होंने रख लिया। एक कंपनी 3 और 1-2 लेंगे, और 500 करोड़ का टर्नओवर है, फार्मा नो उसमें है। दे हैव टेकन ऑलरेडी 3 चार्टर्ड अकाउंट, दे विल टेक मोर। जो इतने सालों तक दे डिड विदाउट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब ओनली रिटेनर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैं और एक कंपनी का अभी लिस्टेड कंपनी का काम करने वाला हूं जिसमें अभी कोई चार्टर्ड अकाउंट नहीं है, बट आई एम श्योर द मोमेंट वो भी 500-600 करोड़ का टर्नओवर है, आई एम गोइंग टू रिकमेंड दैट दे विल बी हैविंग चार्टर्ड अकाउंट। वहाँ पे 3-4 ऐसे ही अब्जॉर्व हो जाएंगे, और ऐसे तो बहुत है इंडिया में, इतने प्रोमोटर्स हैं। सो देयर विल बी शिफ्ट फ्रॉम प्रैक्टिस टू दैट एज इट इज कम है। अपने आप देखोगे 1,16,000 2004 में मेंबरशिप 3.5 लाख हुई, प्रैक्टिस 65,000 to 1,46,000, तो रफली अबाउट 81,000 पीपल हैव एंटर्ड प्रैक्टिस इन लास्ट 18-19 ईयर्स। इंडस्ट्री में कितने गए, 50,000 से 2,04,000, 1,55,000। तो एक बंदा अगर प्रैक्टिस में है तो 2 बंदे इंडस्ट्री में गए। दिस इज आई एम टॉकिंग ऑफ द ईयर्स, लास्ट 18-19 ईयर्स, एंड दिस ट्रेंड इज ओनली गोइंग टू एक्सेंट्यूएट, नॉट गोइंग टू गो डाउन एज टाइम। जितने प्रैक्टिस में भी है, काफ़ी लोग जो भी समझो 3-4 साल से प्रैक्टिस में है, यंगस्टर्स, उनको लगेगा अगर मेरे को इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, दिल मूव टू इंडस्ट्री। दिस अगेन इज द रीजन वाइज स्टेटिस्टिक्स, आप बाद में देख सकते हो। व्हाट इज द पोजीशन इन अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट? जस्ट पिक्ड अप सम स्टेटिस्टिक्स। 3,300 टोटल, 5,815, दिस इज ऑन 1 अप्रैल 22। अपने क्या नाम है, चेयरमैन साहब ने बताया 6,000 हो गए अभी लास्ट रिजल्ट के बाद में, पर एज ऑन 1 अप्रैल जो रजिस्टर्ड मेंबर्स है 5,851, 58% in practice in Surat and 42% in, as compared to 42% of the national average, 58%. And look at Ahmedabad, 44% in practice, Baroda 43% is practice, Rajkot again is 58%. And Gujarat overall is 50% practice, 50% industry. So Surat again, the reason I believe is because it's a business city, lot of opportunities for practice, that's why this indication, and which may remain. I'm saying this outlier may remain. ये जस्ट पार्टनरशिप फर्म्स की वी आर अगेन आप 2006 से 2011 देखो, जब भी इंडियन इंडस्ट्री वाज डूइंग वेल टिल 2008-9, द नंबर ऑफ फर्म्स स्टेगनेंसी वाज देयर। द मोमेंट इंडस्ट्री बी स्टेगनेटेड, नंबर ऑफ फर्म्स वेंट अप। नाउ करंटली वी आर 92,000 एंड आई एम श्योर दिस इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज एट अ पेस नाउ, दिस विल रिड्यूस ओनली, इट मे नॉट इंक्रीज। Again, some statistics around sole proprietor partnership firms in Surat. In Surat, we have 628 partnership firms और 1,600 sole proprietors हैं। ये उमेश शर्मा अपने जो सेंट्रल काउंसिल के मेंबर है, उन्होंने लास्ट ईयर में काफ़ी सारी जगह महाराष्ट्र में
tier 2 cities, tier 2, 3. He did a program and he did a survey of a lot of people कि आपकी practice की क्या मतलब position है. तो turnover wise, this I am talking of tier 2, tier 3 cities, Aurangabad, Ahmednagar, Zulia, Jalgaon, those type of cities. 5 से 10-20 लाख तक का population होगा. तो 61% people said उनकी practice 20 लाख से कम है. 27% said 20 लाख से 25 लाख की practice है. 8% said 50 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ 4%. This is again tier 2, not Bombay, not cities. ऑफिस की स्ट्रेंथ कितनी है? 5 लोग तक 52% प्रैक्टिशनर्स है, 5 लोग तक स्टाफ स्ट्रेंथ था. 5 से 10 लोगों का स्ट्रेंथ 29% के पास था. 11 से 50 का स्टाफ स्ट्रेंथ 18% ऑफ द सर्वे था. 1000 मेंबर्स के ऊपर का ये सर्वे है, सर रीजनेबल. और 50 के ऊपर ओनली 1% ऑफ द 1000 पीपल ही इंक्वायर्ड हैड नंबर ऑफ स्टाफ ऑफ मोर देन 50. ऑफिस मीटिंग छोड़ देते हैं. आउटस्टैंडिंग फीस 0 से 25 तक की आउटस्टैंडिंग फीस आपकी कितनी? 58% है. 0 से 25%. 25 से 50 तक की आउटस्टैंडिंग फीस 35% है कि हमारी फीस की जो पेंडेंसी है 25 से 50 तक है. एंड 50 to 75% इज 7%, विच आई थिंक इज रिडिकुलस. एंड more than 75% is of course 0, which is good. Growth expense, yeah, I was happy at this number. Growth expense, negative level hardly 3%, same level जितना practice अभी है 14%, up to 10% growth 38% said, and about 10% 40%. I am really happy that people are bullish कि growth होने वाली है practice में. ये एक साल पहले के numbers हैं सब. कौन सी एरिया ग्रो होने वाली है आपकी? इनकम टैक्स सेट 18%, 26% सेट GST, 12% सेट ऑडिट एंड 44% सेट मैनेजमेंट. अगेन अपने कहाँ फोकस शिफ्ट हो रहा है? 44% सेट कंसल्टेंसी में बढ़ा होने वाला है. बाकी इनकम टैक्स 18%, GST, ऑडिट. चैलेंजेस क्या है? मैन पावर के चैलेंजेस 38% सेट मैन पावर चैलेंजेस. फाइनेंस मैनेजमेंट खुद का 8% सेट, विच आई एम सरप्राइज्ड. नॉलेज मैनेजमेंट 30% सेट नॉलेज मैनेजमेंट इज अ चैलेंज कि नॉलेज लर्न अनलर्न एंड रीलर्न जो बोलते हैं ना. एंड 24% सेट क्लाइंट मैनेजमेंट, क्लाइंट को मैनेज करना ये चैलेंज है. willingness to grow practice 15% said they are going to converge from proprietor to partnership. 11% said they are going to admit new partners. 7% said हम लोग firms को merge करेंगे. 20% said they are going to open branches in outside the city, and 47% said they want to specialize. Again an outlier. ये सर्वे यहाँ पे करेंगे तो more or less similar number आएंगे. Why I am saying I am not taking a survey, it will take time. Next time you can invite Umesh Sharma ji, he will do the survey and all. He'll get a, so 40%, 7% said they want to specialize in a particular area. So that's again the way forward, giving you what other CAs are feeling in Maharashtra. View of future of CA practice, difficult 5% said, normal 14%, good 64%, and robust 70%. I'm really happy. 64% people saying it's good, the future of CA practice is good, and 17% is very robust. So 81% are optimists of the CA practice. So again, an indicator कि अपने we are in good wicket. जितनी भी negativity हो. I mentioned about channelizing the parallel economy. And ये numbers मेरे पास 19 के बाद के number नहीं आए हैं. 43.5 crore people have got PAN cards in India. Out of 138 crore आबादी, return filing is only 6 crore. Count of taxpayers is 8 crore. ये जो डिफरेंस है बिटवीन A माइनस B इज 37 करोड़. तो मैं नहीं बोलता हूँ पैन कार्ड तो सब क्या होंगे, नॉट नेसेसरली एवरीबडी हैज गॉट टैक्सेबल इनकम, बट कैन वी बिलीव एटलीस्ट 20% ऑफ इट कुड बी टैक्सेबल. आउट ऑफ 37 करोड़ जो डिफरेंस है, 20% टैक्सेबल इनकम रिटर्न नहीं फाइल के, उतना तो अपन एजम्पशन कर सकते हैं. हाँ या ना? कितने वो होते हैं? 7.5 करोड़ रिटर्न. अभी करंट फाइलिंग इज 6 करोड़. दिस इज द रियल टास्क वी शुड बी डूइंग. वी शुड बी एडुकेटिंग पीपल. अब रिटर्न भरो ये, और अपने लिए काम बढ़ेगा, इट विल बी गुड फॉर द नेशन ऑल्सो. सेम वे पार्टनरशिप फर्म, सेम वे कंपनीज, सेम वे एसोसिएशन पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रस्ट, सब जगह द रिटर्न फाइलिंग इज मच लेस देन द नंबर. आई डेंट गेट द स्टेटिस्टिक्स आफ्टर 19, नहीं तो, पर आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल चेंज हुआ रहेगा इसमें. ये आपने देखा, अतुल जी ने बताया 1.40 करोड़ रजिस्टर्ड टैक्स with GST and 40 lakh chartered account members. You can see what is the potential. I'm not saying we are the only profession. There are ITPs, GST practitioners, there could be return preparers, there could be other people also, advocates, lawyers, but this is the, and these are the tax collection. And this is going to be more and more buoyant.
आप देखो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लास्ट ईयर 13,30,000 करोड़ है. नाउ एवरेज इज 1,40,000 करोड़ दिस ईयर. तो 14, तो दिस if the current rate goes on, at least this will be 16 lakh crore, the indirect tax collection. Current जो rate 1,40,000 करोड़ का अपन देख रहे हैं monthly, तो it will be 16-17 lakh crores is the expected. And same way, tax collection also in this quarter has been fantastic. जो जून का एडवांस टैक्स करा है, ये एक जयपुर में जयपुर CA ग्रुप करके है, which is a small youngsters group, which is I had spoken there in 2019. और ये 2019 का है. They had carried out a survey. आपकी प्रॉब्लम क्या है? लो लेवल ऑफ फीस 53% ने बताया. रियलाइजिंग द फीस चार्ज करके कलेक्शन नहीं हो रहा 49%. नए क्लाइंट ढूंढना इज 49%. फ्री एडवाइस, डू यू एग्री कि क्लाइंट लोग जो फ्री एडवाइस लेके आते हैं 48% सर हमारा प्रॉब्लम लोग आके मुफ्त में एडवाइस लेके जाते हैं. नहीं हंसो मत, मैं उसको बोलने वाला हूँ. स्टाफ आर्टिकल्स क्रंच 43%. डेटा मेंटेनेंस एंड सिक्योर 16%. फ्रेंड्स आई बिलीव मी, ये लोग समझे नहीं है. मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा चैलेंज. अपने वी हैव क्लाइंट डेटा और टुडे डेटा प्राइवेसी, डेटा द साइबर सिक्योरिटी, द अटैक्स, आई थिंक दिस इज, मतलब लोग समझे नहीं है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है. बट दिस शुड बी मच हाई. मैनेजिंग एंड डेलीगेटिंग वर्क 15. अगेन आई डोंट एग्री. आई हैव गॉट अ, मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों का नहीं बोल रहा हूँ. वी डोंट नो हाउ टू डेलीगेट वर्क. अपने को क्या किक मिलती है अपन खुद का. मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा था, सीनियर्स विल एग्री. समझो किसी से बच्चे से अपने ट्रायल में सैली नहीं हो रहा है, मैं खुद मेरा इन्वॉल्व हो जाऊंगा. एंड आई यूज्ड टू गेट अ किक, अरे मैंने ट्रायल में सैली कर दिया. सेम वे अभी दूसरा होगा, इनकम टैक्स का रिटर्न है, GST है. अपने खुद को बहुत क्या 30 मार समझते हैं, कुछ भी हो. बच्चे लोग नहीं कर सकते, अपन करते हैं, अपना टाइम उसमें चले जाता है. एंड वी वांट परफेक्शन. आई एम नॉट सेइंग दैट. जनरली CS वी वांट परफेक्ट, वी शुड हैव परफेक्शन. आई एम नॉट सेइंग, बट देयर विल हैव टू बी सम बैलेंस, यू नो, इन डेलीगेशन ऑफ वर्क. How many of you have got a succession plan? Especially my this thing to seniors. जो सीनियर्स हैं यहाँ पे, आपकी खुद की प्रैक्टिस है, सक्सेशन प्लान है, कौन आपके बाद में प्रैक्टिस लेगा? या बाकी में भी जो जूनियर्स, उसमें भी कितने लोगों के पास एक सक्सेशन प्लान है कि आप कैसे करोगे? मैंने देखा हमारी जो ग्रैंड पेरेंट फर्म है, एक पारसी फर्म को दमनिया पांडे बजान, दे वर ऑडिटर्स ऑफ टाटास, इंडियन होटल्स, ये सब बड़े बड़े ग्रुप के जो जहाँ पे खिमजी कोरजी वॉज एन आर्टिकल. हमारी ग्रैंड पेरेंट फर्म 10-12 साल पहले 2 पारसी सीनियर पार्टनर दोनों शॉर्ट गैप में एक्सपायर हो गए, फर्म गायब हो गई. देयर इज नो फर्म दमनिया पांडे बजा, विच वॉज अ वेरी वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड. व्हाई? नो सक्सेशन प्लान. आपको प्रैक्टिस एनकैश भी करनी है, स्पेशली सीनियर्स. यू विल नीड टू हैव सक्सेशन प्लान. यू विल नॉट बी एबल टू एनकैश योर प्रैक्टिस अनलेस योर सक्सेशन प्लान. If your children are there, good, they will take it up as a successor. But if they are not there, so please focus on, you know, the succession plan. तो इसमें भी देखो बहुत कम परसेंटेज वाला सक्सेशन प्लान है, बाकी लोग में हमको जरूरत नहीं है, हमने सोचा ही नहीं है. मोर देन 50% दैट वी आर नॉट थॉट ऑफ दी. ये परसेंटेज थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, और काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है व्हाट इज अ सक्सेशन प्लान. सो प्लीज़ हैव अ सक्सेशन प्लान. आई एम टेलिंग यू, वी एज अ फैमिली फर्म, हम लोग की फैमिली फर्म थी, वी आर इंस्टीट्यूशनलाइजिंग. पहले से फैमिली थी, नाउ वी आर अदर पार्टनर्स ऑल्सो, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग, वी आर ऑल्सो ऑन दैट जर्नी of having a success, not necessarily our children, but other partners, and how do you know? It's a journey which, so especially youngsters है अभी से सोच के रखना, who are having your own practice. I'm not going to speak on this. अपने challenges क्या है practice में? I think we'll, and then what is the solution? 3 challenge है अपने, 3S: service, satisfaction, success. Client needs good service. As firms, at partners, we need success. अपने को अच्छा काम, नया काम मिलते रहे. और अपने साथ में जो प्रोफेशनल जुड़े हैं, आर्टिकल्स हैं या CA है, दे वांट जॉब सेटिस्फैक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है. आज अगर आपके यहाँ स्टाफ क्रंच है या स्टाफ नहीं मिल रहा है, प्लीज़ लुक एट योर वर्क एनवायरनमेंट, वर्क ईथॉस, द टाइप ऑफ जॉब्स यू आर डूइंग. दिस इज वेरी क्रिटिकल. दूसरा क्या है, अपने कॉस्ट बढ़ रहे हैं, सैलरी कॉस्ट आर गोइंग अप. आई थिंक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स विच वी हैव इज वी आर सेल्फ आर अंडरमाइनिंग अ प्रैक्टिस. डू यू एग्री द क्लाइंट आपके पास आता है, आप इसे थप्पा लगा के दो, इज दैट द जनरल लैंग्वेज यूज्ड? तो व्हाई डू वी एक्सेप्ट दैट? डू यू कम्युनिकेट टू योर क्लाइंट व्हाट इज द वर्थ ऑफ दैट थप्पा और सिक्का? गुजराती में सिक्को मारी आपो, हिंदी में थप्पो मारी आपो.
वर्थ क्या है? एज आई टोल्ड, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नेचर इन द कंट्री. जो थप्पा यहाँ पे है उसके भी उसको बैंक फाइनेंस मिलेगा, वो कस्टम्स में देगा, इनकम टैक्स में, जहाँ पे भी उसको देना है, दैट इज दी वर्थ. अपन खुद उसको 500,000 रुपये में अगर वो सर्टिफाई कर रहे हैं, अपन खुद अंडरमाइन कर रहे हैं. बाकी लोगों को क्या बोले अपन? वो आके आपको बोलते हैं मेरे बाजू वाला तो 500 में कर रहा है, ठीक है करा ले. अब यू वाई आर यू डिमीनिंग योर ओन वर्थ? और कहीं करता हो, डिपेंडिंग आप सीनियर हो तो छोड़ दो वो काम को. इतना ग्रीड क्यों कि मेरे को सब काम करना है, 500,000 का भी काम करना है. आप एक लेवल पे पहुंच गए हो, 15-20 साल 25 साल प्रैक्टिस के बाद में, छोटा काम छोड़ दो ना, लेवल बढ़ाओ ओवरऑल प्रोफेशन का. आप छोड़ोगे तो अपने आप बढ़ेगा. तो और दूसरा एक जो वो है कि भाई थप्पा मार के, मतलब दे अंडरमाइनिंग. तो थप्पे का मीनिंग क्या है? समझो आप ऑडिट करते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑडिट? सी दे डोंट वैल्यू, क्लाइंट्स डोंट वैल्यू, उनको नहीं लगता है. बट व्हाई कांट वी प्रोजेक्ट व्हाट वी आर डूइंग फॉर देम? कि मैंने सर्टिफाई किया है तो दैट इज अ सर्टिफिकेट कि आपके स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है. मैं नहीं बोलता हूँ परफेक्ट है, ट्रू एंड करेक्ट नहीं बोलता, ट्रू एंड फेयर है. कैन वी कम्युनिकेट, कैन वी टेल देम व्हाट इज? अपन खुद उनको वैल्यू नहीं बताएंगे तो वो अपने में क्या वैल्यू करेंगे? वो अपन उनके उसमें बह जाते हैं कि भाई वो थप्पा मारो, ये करो. सेम थिंग टैक्स में आप जो एडवाइस देते हो, करवाते हो, उसकी क्या वैल्यू है? एनी गेसेस कि आप जो टैक्स की एडवाइस करते हो उसकी क्या वैल्यू है? आर यू प्रोजेक्टिंग टू योर क्लाइंट्स? आप सही एडवाइस करते हो तो TDS टाइम में भर रहे हैं, एस्टिमेट्स के में एडवांस टैक्स भर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. we don't have that habit of communicating. So please introspect and please communicate what you're doing for the clients. Environment is competitive, वो तो रहने ही वाला है. बट इसके बावजूद आपने आपका खुद का एक वो कर लिया, क्या बोलते हैं, इमेज, तो competition will not impact you. I'm very clear on that. Maybe थोड़े साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट यू मेक योर ओन लेवल. पोजिशनिंग बोलते हैं, आपकी पोजिशनिंग बनाओगे तो यू विल डू वेल. क्लाइंट लॉयल्टीज आर नो लॉन्गर स्टेबल एज अर्लियर. डू यू एग्री? स्पेशली नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है तो इफ दे आर बिग क्लाइंट्स दे विल से आई विल गो टू अ लार्जर फर्म. उसको रिलेशन की पड़ी नहीं है कि मेरे फादर के साथ ये 25 साल से जुड़े, 50 साल से जुड़े. दे आर नॉट बॉदर्ड. दे आप ठीक काम कर रहे हो कि नहीं, एज पर देयर एक्सपेक्ट. आप काम ठीक कर रहे होंगे तो देन नो प्रॉब्लम. बट इफ दे फील, तो एक परसेप्शन वैल्यू भी है. रिटेनिंग क्लाइंट्स हु आर ग्रोइंग बिग इज अ चैलेंज. आप खुद ग्रो नहीं करते. आप सपोज यू आर अ सोल प्रोप्राइटर एंड यू रिमेन योर क्लाइंट इज ग्रोइंग. इफ यू डोंट कीप पेस विद योर ग्रोथ, वो क्लाइंट सूनर रादर लेटर जाने वाला है. यू हैव टू ग्रो विद द क्लाइंट. अगर क्लाइंट ग्रो रहा है, आपकी भी प्रैक्टिस ग्रो होनी चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रोवाइड ऑल सर्विस टू देम. या तो आप बिजी रहोगे, आप और 1000 काम करोगे तो काम नहीं चलेगा. द ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ प्रैक्टिस लाइक ऑडिट टैक्स अपीयर टू बी, आई एम सेइंग अपीयर, इट इज एक्चुअली नॉट ओवर क्राउडेड. ये अपने क्लाइंट ने इतने दिमाग में भर दिया कि दूसरा तो करने के लिए तैयार है. आप 10,000 ले रहे हो, वो 5,000 में करने तैयार है. एंड आई विल कम टू दैट. कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग एश्योरेंस ऑडिट को तो कॉस्ट बहुत बढ़ गया है. अपने बिलिंग की स्किल्स ही नहीं है. अपने इतने कम फीस चार्ज करते हैं ना, ये एक विशियस सर्कल है. अपन फीस लो चार्ज करते हैं तो उसके लिए अपने स्टाफ का रेम्यूनरेशन कम है. देयर इज लेस नंबर ऑफ स्टाफ विद इन द ऑफिस एंड लो इनकम फॉर सेल्फ. इसके वजह से अपने को प्रेशर आता है कि अपनी बिलिंग बढ़ाएं. उसके लिए क्या करते हैं, अपन बहुत काम एक्सेप्ट करते हैं छोटा छोटा लो फी वाला. तो फिर अपने को खुद को टाइम नहीं मिलता वो कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, हाउसकीपिंग. उसके से लो क्वालिटी ऑफ सर्विस. तो पूरा एक चक्रव्यूह है और अपन इसमें फंसे हुए हैं. डू एग्री कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? ये चक्र में फंसे हुए अपन, तो निकलना है चक्रव्यूह से कि नहीं? लेट्स सी हाउ टू कम आउट ऑफ इट. रेगुलेटरी क्या चैलेंज है? इनकम टैक्स पे डिडक्शन कम होते जा रहे हैं, एग्जेम्पशन सिंप्लीफिकेशन हो जा रहा है. सूनर रादर देन लेटर यू विल गेट अ रिटर्न. तो वो काम कम होने वाला है, जो सिंपल रिटर्न्स है वो. अपने सामने एक्शंस आई ऑलरेडी डिस्कस, NFRA, QRB, FRRB. हाँ, दूसरा FRRB इंस्टीट्यूट की है, जो पहले हम सिर्फ लिस्टेड कंपनी का रिव्यू करते थे, जो रिपोर्ट्स. अभी लिस्टेड कंपनी NFRA कर रही है. FRRB हैज़ नाउ स्टार्टेड पिकिंग अप प्राइवेट कंपनी बैलेंस शीट्स एंड P&L के सही हो रहा है कि नहीं. और अभी मैंने अनिकेत का कहीं पे सुना था, ही वॉज FRRB आई थिंक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन लास्ट ईयर और बिफोर ही बिकेम वाइस प्रेसिडेंट. एंड ही मेंशन इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू यूज AI टू रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. पहले हमारा लिमिटेशन था, जितने लोग थे 50, 100, 200, 500 बैलेंस शीट पकड़ के अपन देखते थे. अगर आप मशीन को यूज़ करने लगोगे बैलेंस शीट रिव्यू के, ये सही शेड्यूल 3 का कंप्लायंस है कि नहीं, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस है कि नहीं है, तो वंस मशीन स्टार्ट यूजिंग नंबर विल बी, सो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज. एंड इसका अगर बहुत गलत काम है, इट रिफर्स टू DC ऑल्सो.
पीयर रिव्यू का अभी चाइनीज़ वॉल है, पीयर रिव्यू फाइंडिंग्स डजंट गो टू दी डीसी, उसमें प्रेशर बहुत है इंस्टीट्यूट पे कि अगर पीयर रिव्यू में किसका गलत आया तो उसको आप डीसी में रिफर करो, तो दैट अभी तक नहीं कर रहे हैं। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड वाज ऑल्सो लुकिंग एट लिस्टेड कंपनी नाउ, ये इसमें गवर्नमेंट का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। देयर आर 6 गवर्नमेंट नॉमिनीज, चेयरपर्सन ऑफ गवर्नमेंट, 5 काउंसिल मेंबर्स, दे ऑल्सो विल फोकस ऑन लार्ज प्राइवेट कंपनीज नाउ। We discuss about many changes in law, standards and guidelines. अपने इंटरनल कंप्लायंस बहुत है, जैसे जो एकदम सीरियस है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, कोड ऑफ एथिक्स, वी टॉक ऑफ इंडिपेंडेंस कि आप ऑडिट का काम करो, टैक्स कर सकते हो, कंसल्टिंग कर सकते हो कि नहीं उसी क्लाइंट में, देयर इज अ चैलेंज। प्रोसीजर्स आर बिकम cumbersome. और हाउ मेनी ऑफ यू आर इन्वॉल्व इन द जीएसटी प्रैक्टिस? ऑलमोस्ट ऑल, आई थिंक यहाँ पे आधे से कम लगा। आई एम रियली हैप्पी, लेस देन 50%. Otherwise, see, GST has been a game changer for the profession. Thanks to the work Atul Bhai, Madhukar Hirgange and the whole team of the Indirect Tax Committee did. So today, GST was one where the whole practice shifted from the advocates, tax professionals to the CA fraternity. Because अपन ने मेहनत बहुत की थी. We did a lot of training programs. I was the president in that year. But unfortunately, जितनी opportunity थी उतने अपन फंस भी गए. ड्यू डेट्स बहुत हैं, इतना मतलब टाइम जाता है कि लोग वो क्या बोलते हैं, नाक तक वो काम, वो कंटिन्यूस रोलिंग चालू ही रहता है उसका। टेक्नोलॉजी चेंजेस, कॉन्स्टेंट अपडेशंस ऑन टेक्निकल फ्रंट, यू नो, अनलर्निंग अ बिग चैलेंज। इनफैक्ट इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल पे ये फोकस हो रहा है अभी अपने क्या नाम है टेक्नोलॉजीज़ पे कि उसको लिमिट, ऑलरेडी डिस्कस अबाउट आरपीए, बॉट्स, एआई। एक यंगस्टर्स के लिए अच्छा एरिया इज ऑन ब्लॉकचेन, एंड दिस अगेन एन अपॉर्चुनिटी। जितना प्रॉब्लम है फॉर द यंगस्टर्स, हाउ टू हार्नेस एआई फॉर अकाउंटिंग, हाउ टू हार्नेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑडिटिंग, हाउ टू हार्नेस एआई फॉर इनकम टैक्स, फॉर जीएसटी। इफ़ यू कैन वर्क, जो यंगस्टर जिसके पास टाइम है, आई थिंक यू विल हैव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हम लोग जैसे हमको टाइम नहीं है, हम लोग बूढ़े हो गए, हम लोग को और बहुत प्रैक्टिस का काम। फॉर यंगस्टर्स आई थिंक दिस एन अपॉर्चुनिटी, ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू हाउ टू हार्नेस ब्लॉकचेन है। Apply your mind and you will be the, you know, first mover advantage. We discussed more use of technology is making the clients more independent. Impact of, you know, आज automation में audit trail नहीं है, अभी गवर्नमेंट का वो भी आ गया है कि आपको, you know, you will need to have an audit trail under the MCA also, whether it's Tally or whatever you are using. Most important is पहले क्या था, अपनी प्रीमियम क्या थी, जितने सफ़ेद बहाल उतनी ज़्यादा वैल्यू, नॉलेज था, एक्सपीरियंस था। अब क्या है, वेर इज़ द नॉलेज एंड ऑल दिस, वेर इज इट अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ अ बटन। आज किसी को भी पूछो तो गूगल में सर्च करके यू गेट अ क्विक आंसर। सो दैट प्रीमियम इज गॉन। वो सफ़ेद बाल का या बाल नहीं होने का प्रीमियम चले गया है। तो यू आर एट इक्वल, आप 25 साल से प्रैक्टिस में होगा, नया भी आ गया, इंफॉर्मेशन नॉलेज इज अवेलेबल, एक्सपीरियंस तजुर्बे का सिर्फ डिफरेंस है, यू नो, दैट्स द ओनली डिफरेंस विच इज देयर, बट नॉलेज डिफरेंस इज नो लॉन्गर देयर। ह्यूमन कैपिटल, स्टाफ लॉयल्टी, यहाँ पे सूरत में चैलेंज है कि नहीं है? एट्रिशन है सूरत में स्टाफ का, भयंकर है। अच्छा है, सो दिस इज अ चैलेंज। एंड सी, अपन जनरली मैंने देखा है, अपन सीए ऑफिस है, अपन रोते रहते हैं कि मेरे को बीकॉम का स्टाफ में पगार, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल 5,000 है, तो और कोई 10,000 दे रहा है, और कोई 15,000 दे रहा है, समझो बीपीओ केपीओ है, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, अरे आज उनको तो 10 लाख मिल रहा है, मतलब सिटीज़ में, यहाँ पे समझो 6 लाख हो गया, जो भी होगा। अपन रोते रहेंगे, बट एक समझ लेना कि दीज पीपल हैव अ चॉइस। आज समझो आप बीकॉम है, व्हाई डज ही वांट टू वर्क इन अ ड्रैब, यू नो, सीए ऑफिस? अपनी ऑफिस कैसे है, आप जांच के देख लो, काफ़ी सारी अच्छी हो गई है, बट 90% ऑफ द सीए ऑफिस विल बी हॉरेबल। डू आई एग्री? फाइल के थप्पे बड़े हैं, सफाई नहीं हुई है, वो जाले लगे हुए हैं। आई होप आई एम रॉन्ग, बट दैट इज माई अर्लियर इंप्रेशन। Majority is good, happy. The reason I'm saying is today's youngsters have got a choice. वो करना ही नहीं है सब फालतू ऑफिस में काम। आज बीपीओ केपीओ मस्त है, फर्स्ट क्लास, वो डेस्क है, टॉप है, ये है, कैफेटेरिया सुपर्ब है, एकदम फ्लैशी कैफेटेरिया है, खाना पीना मस्त है। So they have got a choice. अपन रोते रहेंगे, but please understand, तो अपना रोने से काम नहीं चलेगा. You will have to change the work environment, not only the physical environment. How are you motivating your staff? How are you training your staff? दैट बी ए गेम चेंजर। आज समझो आपके लोग नहीं आ रहे, आप दूसरी फर्म में जा रहे, सूरत में ही, आप एनालाइज करोगे तो वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, वहाँ पे जवाबदारी अच्छी मिल रही है, वहाँ पे उनको लर्निंग अच्छा हो रहा है।
रोते रहोगे, आप चेंज नहीं होगे तो रोते रहोगे, यू विल नॉट गेट स्टाफ. सो इंक्रीज ऑफ रेम्यूनरेशन इज अ गिवन. यू विल नीड टू मोटिवेट, यू विल नीड टू ट्रेन योर स्टाफ प्रॉपरली. आज क्लाइंट भी ऑब्जर्वेंट है. आज इतना वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है. मैं तो अपने इसमें लाइफ में देखा, मैं जब भी मेरी ऑफिस में ज्वाइन हुआ था सीधा दरिया में डाल दिया था, ऑडिट करने चल जाए, पता ही नहीं क्या करना है. पर आज वो नहीं चलता है. आज हम लोग पहले से ट्रेन करते हैं, लोग कहीं भी क्लाइंट के पास जाते हैं, एंड दैट इज हैविंग अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट. जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो सके, रोटेशन कम हो एज कंपेयर टू. एक दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि आप क्लाइंट के पास आदमी के तो टीम रोटेट होती जाती है, और आपकी कम होगी तो यू विल हैव एन एडवांटेज. अदरवाइज, सो ऑल दीज आर चैलेंजेस इन द सोल्यूशन. और जैसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं लोग, वो बाहर चले जाते हैं, 2-3 साल अपने यहाँ रह के दे गो आउटसाइड, बट दैट इज अ गिवन. एक चीज़ दूसरी देखिए, अपने सीए से अपने मैनेजर स्किल्स कम है. अपनी जो ट्रेनिंग है उसमें हाउ टू मैनेज. आज एमबीए क्यों सक्सेसफुल है? जीरो नॉलेज बट ही कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स. चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरी नॉलेजेबल बट कांट सॉल्व प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं है. दैट इज, आई एम सेइंग, इट्स अ ट्रेट अमंगस्ट ऑल ऑफ अस. So we need to look at the managerial skills among youngsters and develop that skills. Youngsters में patience कम है, so that also again you need to. At the same time, let me again थोड़ा मैं boast करूँगा. I'm looking at my own office. Before 10 years or maybe before 15 years, we didn't have a single person in HR. हमारे अभी currently 250 का staff है. आज 3 ladies हमारे HR में, 3 ladies. पहले रिटेंशन जीरो था. कोई 1 साल रहता था सीए, कोई 3 साल, कोई 5 साल. 5 साल से ज़्यादा मेरे टाइम पे. मैं निकल गया प्रैक्टिस में से बाहर, एग्जीक्यूशन में से. बाकी लोग अच्छे हैं. टुडे आई हैव गॉट विंटेज ऑफ पीपल हु आर 10 years, 7 years, 5 years. एक पाइपलाइन पिरामिड है. आज समझो 10 लोग ज्वाइन होते हैं 1 साल में, या 20, 25, 50 जो भी. पहले जीरो रिटेंशन था उसमें से, अभी एटलीस्ट 10-20%. तो उससे क्या होता है, द मोमेंट एज अ स्टेबिलिटी, द क्लाइंट ऑल्सो परसीव दैट, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, आपका काम ऑटोमेटिक बढ़ेगा. And that I am seeing myself. Again, I am telling you out of experience. I am not giving you a sermon. The moment there is stability, work will increase. And कुदरत देखते रहती, client देखते रहते हैं, and word of mouth they know what is happening. The youngsters are interested more in challenging work, routine and mechanical work नहीं है. उनको समझाओ, motivate करो, they will do any work for you. दूसरा चैलेंज क्या है कि अपने क्लाइंट के यहाँ पे भी स्टाफ का प्रॉब्लम है. पहले क्या होता था, अपने क्लाइंट थे, दे यूज्ड टू हैव वेरी गुड अकाउंटेंट. अपना समझो 80-90% काम हो ही जाता था. Is it fact now the client level of the quality of people at their end also has gone down, especially mid and small clients? So that is, I think, another challenge. उसमें अपना टाइम ज़्यादा जाता है. दूसरा, अपना नेचर, स्वभाव. We are very docile, passive in our nature. Do you agree? आपने समझो एक कोई काम के लिए 10,000 की फी चार्ज की, क्लाइंट आ गया रोते रोते, ना अरे इतना बहुत ज़्यादा फी है, आप 8,000 ले लो, 7,000 ले लो, जो भी, वॉट एवर. Do we agree? 99% we agree, including me. I'm not. मैं why should we have that this thing? तो अपना वो स्वभाव है, अपना जो एक नेचर है, मैं including me I'm saying, तो we need to change. Why I'm highlighting, ये खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके मैंने दिया, आप लोगों को नहीं किया है. We need to change that. We need to don't have to be docile. एक अपने दूसरा स्वभाव है, greed to increase volume of work at any cost without doing proper diligence. I'll speak on that also a bit. अपना कम्युनिकेशन ठीक नहीं है. To showcase oneself, we need to project, communicate, we discussed. Most important, सोसाइटी का परसेप्ट, जो बिजनेसमैन का परसेप्ट, वी आर ए नेसेसरी एविल के इसके मेरे को रिटर्न फाइल करने के लिए सीए चाहिए, मेरे को वो प्राइवेट कंपनी का ऑडिट, अपनी खुद की वैल्यू अपने को. सो 90% इज रेगुलेशन बेस्ड, 10% इज अ वैल्यू बेस्ड. वी नीड टू चेंज दैट परसेप्शन. मैंने काफ़ी लोगों में देखा अपने में कि द वेरी नॉलेजेबल, बट जब भी एग्जीक्यूशन आएगा प्रोफेशनल काम का, उसमें बहुत फर्क है. इंडिविजुअली एकेडमिकली नॉलेजेबल क्लाइंट, बट वर्क एग्जीक्यूशन इज वेरी बैड. अपन कभी जितने वॉट एवर क्लाइंट्स कॉल यू अप ऑन द फोन, हाउ मेनी ऑफ यू डॉक्यूमेंट दैट? आज मेरे किसी ने क्लाइंट ने फ़ोन किया, कुछ एडवाइस, कैपिटल गेन है, TDS है, जो भी है, या GST है, डू यू डॉक्यूमेंट दैट? भले आप बिलिंग करो कि नहीं करो. मेरा फैमिली डॉक्टर है, मैं उसको फ़ोन भी करता हूँ ना, उसके डायरी में वो लग जाता है, उसके उसके पास एक वो देयर इज़ अ नोट पैड. ही इज़ नॉट अ जनरल प्रैक्टिशनर है, पर जो भी मैं जब भी उसको साल में 6 महीने में जब उसको फीस सेटल करने जाता हूँ, उससे पूरी लिस्ट रहती है, वो टोटल मार के बोल देता है. अपने कितने कहाँ लिस्टिंग करते हैं, क्या क्या आप करते हो, आज इनकम टैक्स का आप काम करते हो. डू यू मोस्ट ऑफ यू वेलकम, मैं थोड़ा जंप कर रहा हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू रेज अ बिल फॉर इनकम टैक्स सेइंग इनकम टैक्स फीस फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो, फॉर AY सो एंड सो, एक बिल आप इनकम टैक्स का रेज करते हो? हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? Most of us.
बाकी लोग क्या डिटेल बिलिंग करते हो? वो इनकम टैक्स पे क्या क्या काम करते हो आप? Estimates, TDS compliance, return filing, assessment, I don't know what all. Do you write that? How many of you write? Oh, quite a few, but बहुत कम है. आप खुद नहीं दिखाओगे क्लाइंट को कि भाई आप क्या क्या कर रहे हो, हाउ विल यू पे? आप एक लाइन का बिल भेजोगे तो एक लाइन की फीस मिलेगी आपको. आप 10 लाइन आपने, मैंने एक हमारे एडवोकेट दोस्त का मैंने बिलिंग 3 पेज का बिलिंग देखा मैंने. क्या क्या लिखा था? हियरिंग फिक्स ऑन सो एंड सो डे, अटेंडेड कोर्ट, क्या था उसके अंदर? हियरिंग दैट मैटर एडजॉर्न, नेक्स्ट डे ऑफ हियरिंग मैटर एडजॉर्न. ऐसे 3 पेज का बिलिंग है. जो जो काम हुआ है, तो आपके यहाँ फोन भी आया है, कंसल्टेशन ऑन सो एंड, व्हाई डोंट यू राइट इट? आप लिखोगे तो उसको पता चलेगा काम क्या हो रहा है. तो क्या अरे आप क्या काम कर रहे हो? आप 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, लाख, जो भी आप चार्ज कर रहे हो. बट अनलेस यू डॉक्यूमेंट वॉट यू आर डूइंग फॉर देम, दे विल नॉट अप्रिशिएट द वैल्यू. तो इंक्लूडिंग द टेलीफोन कन्वर्सेशंस. And today what has happened in practice, as I told you, पहले knowledge based था, now it is more like branding, size, organization and management. Because knowledge available है. What will distinguish you is your own branding, your positioning, your size, your organization, how you are managing the work. I am not going to speak, अपना काम कम होते दिख रहा है यहाँ पे. What are the strategies? तो first is self evaluation. आपको important है कि भाई मैं प्रैक्टिस मैनेजमेंट करना है तो फर्स्ट इज सेल्फ इवैल्यूएशन, राइट साइजिंग, क्लाइंटल, पोजिशनिंग, फीस एंड बिलिंग. आई जस्ट क्विकली रन थ्रू. ये मैं, दिस इज मेनली फॉर यंगस्टर्स. आई विल नॉट टेक टाइम. आप लोग सब प्रैक्टिस में यो, कैसे आप प्रैक्टिस में जा सकते हो, रिटेनर हो सकते हो, स्पेशलाइज कर सकते हो, वर्क इन अ फर्म और जॉइन एन एग्जिस्टिंग फर्म. सी मेनी पीपल वांट टू सॉर्ट आउट देयर ओन, नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट सेम टाइम फॉर यंगस्टर्स आई एम सेइंग देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी इन एग्जिस्टिंग. एज टोल्ड यू, मोस्ट ऑफ द फर्म्स डोंट हैव सक्सेशन प्लानिंग. जितने एल्डर्स है सबने यहाँ पे किसने हाथ नहीं ऊंचा किया है. सो इफ यू रिमेन इन द फर्म फॉर क्वाइट सम टाइम, यू विल हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी इन दैट फर्म. तो अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस है. यू कैन बी अ बुटीक, मतलब स्पेशलाइज्ड. यू कुड बी अ रिटेल स्टोर, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट सब कुछ कर रहे हो. यू कुड बी अ बुटीक एडवाइजरी, कंसल्टिंग प्रैक्टिस, और यू कुड बी प्लान, पॉलीक्लिनिक स्पेशलिस्ट कमिंग टुगेदर. तो अलग अलग मॉडल है सबके लिए. सी देयर इज नो वन मॉडल. अपने अपने माइंड के हिसाब से, अगर समझो मैं इंडिपेंडेंट माइंडेड हूँ तो मेरे लिए तो रिटेल स्टोर ही अच्छा, मैं ही सब काम करूँगा. मैं अगर कोलैबोरेटिव हूँ तो आई कैन डू अ पॉलीक्लिनिक, ऑल स्पेशलिस्ट कमिंग टुगेदर. आई एम वेरी फोकस ऑन वन पर्टिकुलर एरिया, से जीएसटी, से इंटरनेशनल टैक्स, देन आई कैन बी अ बुटीक और आई कैन बी एन एडवाइजरी फर्म. सो देर इज नो वन सोल्यूशन फॉर ऑल. अपने अपने माइंडसेट के हिसाब से, जो सेल्फ एवेल्यूएशन के हिसाब से, यू कैन डू दैट. लार्ज अकाउंटिंग फर्म्स की क्या बेनिफिट्स, आई विल नॉट गो टू दैट. ये आईफेक की स्लाइड है for small and medium practitioners. What are the critical areas? Planning for the firm, practice के अलग अलग मॉडल है, एसोसिएशन नेटवर्क है, how to build and grow the firm, developing people strategy is very important, leveraging technology, again critical, client relationship management, risk management and succession planning. These are the steps to be a very successful small and medium. ये सब steps है. अपने सक्सेशन की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, पीपल. आई विल नॉट गेट, ये बाद में आप पढ़ सकते हो, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा. ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो अपन जो अभी कर रहे हैं, ज़्यादातर एफिशिएंसी बेस्ड प्रैक्टिस में है, मोर वॉल्यूम बेस्ड प्रैक्टिस. वी नीड टू गेट इनटू एक्सपीरियंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड अल्टीमेटली एक्सपर्टीज बेस्ड प्रैक्टिस. एक ऑलवेज सवाल आता है, हम क्लाइंट कैसे बढ़ाएं? तो देयर आर वेरियस ऑप्शन. वन इज ऑफ कोर्स द बेस्ट थिंग इज यू स्पेशलाइज इन सम सब्जेक्ट एंड स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्टिंग विद स्टडी सर्कल, ब्रांच, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल. तो जो भी जीएसटी, इंटरनेशनल टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जो आपका एरिया, ऑडिट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस, जो भी वैरायटी, फाइनेंस, जिसमें आप काम कर रहे हो उसमें आप करो. फर्स्ट इज स्टार्ट स्पीकिंग पब्लिकली. एक तो सीए अपने बॉडी के उसमें, और अगर चांस मिले तो इंडस्ट्री बॉडीज़ में. आपके यहाँ पे सूरत चेंबर ऑफ कॉमर्स है या दूसरे जितने इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं, कोई व्यापार मंडल होगा, कुछ होगा. स्टार्ट स्पीकिंग. नेक्स्ट ऑफकोर्स वर्ड, आप अच्छा काम कर रहे हो, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा. सोशल मीडिया, please harness social media. Again, as a firm, you can't do it, as per the code, to the best of my knowledge, I don't know, Jay will, but as an individual, you can give posts. आज समझो आप जीएसटी में एक्सपर्ट हो, तो जीएसटी में कुछ चेंज आ गया, ये चेंज हो गया, मेक इट यूजर फ्रेंडली, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, एंड इमीडिएटली यू विल हैव अ लाइकिंग. सो ग्रेजुअली और ये सब में टाइम लगता है. आज आप करोगे, आपको इमीडिएटली उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. यू हैव टू कीप ऑन परसिस्टिंग, द बेनिफिट विल कम आफ्टर सम टाइम. स्टडी सर्कल्स,
અતુલ ભાઈ ને જય ભાઈ ને સબને બાત કિયા ડોમેસ્ટિક એન્ડ ગ્લોબલ નેટવર્કિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે ગુજરાતીમાં કહાવત છે દુનિયામાં સૌથી મોટી ખાણ ઓળખાણ. સો દેટ ઇઝ નેટવર્કિંગ. Business development initiative, empanelments, these are all the way. When you start the practice, you may do all types of work, but moment you start maturing, 15 years, 20 years, I think you need to identify what type of customers you want to have. Understand the client need, exceed their expectation. What is the value you are giving to a client? Is it just compliance, just income tax audit, ye jo hai, or cost optimization you are advising them, or some special advisory work you are doing? So build up a client profile. Who's your ideal client? How many of you have said no to clients to accept some work? I'm seeing few hands rising, very few. मतलब आप लोग अलग अलग लेवल्स ऑफ प्रैक्टिस में हो, आपके खुद के ABC क्लाइंट की लेवल होगी. जिसने अभी तक आज क्लाइंट को ना नहीं बोला मेरे को तेरा काम नहीं करना है, एक टाइम बोल के देखो. कोई भी हो C कैटेगरी क्लाइंट जो एकदम ही कम फी दे रहा हो, 500,000 की फी देता हो साल भर में, 2,000 की फी देता हो, एक टाइम ना बोल मेरे को नहीं करना आपका काम. द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस यू विल गेट will be a game changer. Let me tell you, you have to say no. We have said no to very, very mouth-watering clients, including Board of Cricket Control. Can you believe? For different reason. That was more from, a risk reason, not for this thing. But you have to, of course, it's a challenge. You have to discuss with your partners. It's not an easy task to say no. But काफ़ी आएंगे, but you need to, do that. We are not able to advertise. यहाँ पे जो youngsters है कि they can start the tap the startups. Client can be classified in 3 categories जो मैंने देखा है: quality, relevant and fair in giving fees, moderate and practical, और third category is a miser. वो छू ही करते रहता है, कभी उसको फी देनी नहीं होती. वो आपकी गलतियाँ निकालते रहेगा, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, उसको फी देनी नहीं होती है. सबके पास तीनों कैटेगरी के अच्छे भी क्लाइंट है, मीडियम भी है, और सबके पास है तीनों कैटेगरी. The third type of client can be described by the definition of cynic given by Oscar Wilde. What is a cynic? A man who knows the price of everything and the value of nothing. तो जिस आदमी को क्लाइंट को आपकी वैल्यू नहीं है at a certain point of time, उसको टाटा बाय बाय कर देना है. टाइमिंग में आप पे छोड़ता हूँ, 5 साल 10 साल 15 20 25 साल के प्रैक्टिस के बाद में जिसको आपकी कदर नहीं है उसको आपके पास मत रखना. तो जो थर्ड कैटेगरी है, एक पैरेटो प्रिंसिपल है, और आप आपके प्रैक्टिस में भी देखोगे 80% ऑफ योर फीस विल बी कमिंग फ्रॉम 20% ऑफ क्लाइंट्स एंड 20% ऑफ द फीस फ्रॉम 80% ऑफ द क्लाइंट्स. तो आपको भी डिसाइड करना है कहाँ पे फोकस करना. अपना क्या आपने इतने उलझे हुए हैं, मेरे को इनकम टैक्स की डेडलाइन है, GST की है, ऑडिट की है, तो जो मेरा 80% मेरे को जो फीस दे रहा है उस क्लाइंट पे आपके फोकस हो रहा है कि नहीं. आई एम वेरी क्लियर, आपका जितना फोकस उस पर होना चाहिए नहीं हो रहा है, बिकॉज अपन पूरे वो वॉल्यूम में फंसे हुए हैं. मेरे को एवरी डे देयर सम डेडलाइन यू फिक्स अप. तो अगेन आफ्टर रीचिंग अ सर्टन लेवल, C कैटेगरी क्लाइंट छोड़ दो. ऑफकोर्स इंडिया में आप सीधा टाटा बाय बाय नहीं कर सकते हो, सूरत गांव में फैल जाएगा, ये तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, इसको काम नहीं करना है. यू हैव टू हैंडल विथ केयर. हमने किया है, मैं खाली आपको कोरा भाषण नहीं दे रहा हूँ. 1918 अभी नहीं, आज से 32 साल पहले व्हाट वी डिड, हमारे यहाँ पे 2-3 बीकॉम थे जो इनकम टैक्स में रिप्रेजेंट के लिए जाते थे काम करने के लिए. हमने उनको बोला आपको प्रैक्टिस चालू करना है तो कर लो, और क्लाइंट को बोला आपको चाहिए तो हम लोग छोटा काम कम कर रहे हैं, हमारा मतलब फंसे हुए ये वो जो भी कुछ स्टोरी दी, और ये लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको करना है. और हम लोग अवेलेबल है 24/7. आपका कोई फैमिली डिस्प्यूट हो, आपको बड़ा काम करना हो, रूटीन काम में से आफ्टर सर्टन टाइम 10 15 20 आप पे छोड़ता हूँ. आई एम नॉट ऑन द टाइमिंग. प्लीज कट डाउन ऑन द C कैटेगरी. अमाउंट ऑफ रिलीफ यू विल गेट, द अमाउंट ऑफ टाइम यू विल सेव टू डू फ्रेश थिंग्स. वो आपको काम बहुत आएगा दूसरी चीज़ करने में, अभी तो टाइम ही नहीं है. तो कट डाउन ऑन द C कैटेगरी क्लाइंट्स अच्छी तरह से. इंडिया में फॉरेन जैसे सीधा हायर और फायर नहीं हो सकता है, इंक्लूडिंग क्लाइंट. हैंडल विथ केयर, टैक्टफुली. उनको आप ही बोलो ये जूनियर अच्छा है, मैं इसको काम देता हूँ. आपका समझो जो आपके लिए C कैटेगरी है और किसी जूनियर के लिए A कैटेगरी हो सकता है, तो उनको रेफर कर दो आपके साथ जो एसोसिएटेड है, दैट विल हेल्प. ABC एनालिसिस करो आपके क्लाइंट की. गुड, मॉडरेट, पुअर फीस. क्वालिटी ऑफ क्लाइंट, प्रोग्रेसिव. उसके खुद के अकाउंट्स के लोग अच्छे हैं तो अपना हेडेक कम है, प्रोग्रेसिव है. और ग्रोथ क्या, आप छोटा भी काम कर सकते हो, आपको पोटेंशियल लग रहा है, पर पोटेंशियल नहीं लग रहा है तो छोड़ देना. काफ़ी सारा टाइम अपन काम लेते आ रहे, ये मेरा प्रोफाइल बढ़ जाएगा,
डू वी एग्री? ये बंदा मेरे पास मेरे इसमें आ जाएगा. तो एक या दो क्लाइंट ऐसे हो सकते हैं. नॉट ऑल योर क्लाइंट कैन एड प्रोफाइल वैल्यू. प्लीज थिंक अबाउट इट. काफ़ी टाइम काम लेते हैं. अगर ये बंदा मेरे पास मेरा क्लाइंट बन जाएगा, मेरा प्रोफाइल वैल्यू बढ़ जाएगा. बट नॉट नेसेसरली ऑलवेज ट्रू. So what does the client need? Quality of service, loyalty, reliability, improvement, satisfaction and support. I'll not. So get closer than ever to your customers, so close that you tell them what they need well before they realize it themselves. आज अपने पास कहाँ टाइम है इतना जो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं. जनरल प्रैक्टिस में जो बोलता हूँ, डू यू हैव टाइम टू डू दिस? एंड दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर. How many of you keep the amount of time you spend on your client? So time sheets are a must. You start keeping your time sheets. आपके जो भी असाइनमेंट के टर्म्स कंडीशंस है टू बी वेरी क्लियर. जैसे स्पेशली कंसल्टिंग, ऑडिट वगैरह तो ऑडिट के बाद में फीस, बट इफ इट इज कंसल्टिंग वी टेक 25% अपफ्रंट. तो क्या वो क्लाइंट का भी स्किन इन द गेम आ जाता है. नहीं तो फ्री एडवाइस में सब माहिर है. सो इफ यू आर डूइंग कंसल्टिंग, टेक 25% इन एडवांस. उसमें कितनी क्रेडिट पीरियड है, क्या है, उसमें कोई बेशर्मी नहीं है अपने कि अपने 15 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए, महीने के अंदर होना चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू चार्ज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस फॉर योर सूरत बेस्ड क्लाइंट्स? मैं एक सिर्फ शाह साहब का हाथ देख रहा हूँ, 2-3 जन. मैं खुद की फर्म की, हम लोग तकरीबन वी स्टार्टेड अ फर्म इन 1936 टिल समवेयर इन 1990s वी वर नॉट चार्जिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस फॉर बॉम्बे बेस्ड क्लाइंट्स एंड बॉम्बे केप्ट ऑन एक्सपांडिंग. कभी अंधेरी में काम है, कभी नवी मुंबई में, कहीं कहीं है, बोरीवली है, कभी वसई है. काम तो सब जगह है. वो क्या गुजराती में दूसरी कहावत है, टीपे टीपे सौरव भरा है. तो सूरत में भी है. लॉयर्स क्या करते हैं, सब कुछ वो आउट ऑफ पॉकेट करते हैं. तो 2 to 3% और 5% ऑफ द फीस प्लीज चार्ज एज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस वॉट एवर यू कैन. तो दैट इज अ रीइंबर्समेंट. प्रिंटिंग कॉस्ट है, फलाना कॉस्ट है, जेरोक्सिंग है, सब वो छोटा छोटा है. ट्रैवल है, कम्युनिकेशन, आपका पेट्रोल का बिल है, गाड़ी में जाते हो जिसमें भी जाते हो. चार्ज एवरीथिंग. बी कर्टियस बट बी प्रोफेशनल. वेरी इंपॉर्टेंट. चार्ज एज सुन एज दी असाइनमेंट गेट्स ऑफ. स्पेशली अदर देन ऑडिट या टैक्स या रेगुलर जो रूटीन असाइन की बात करते हो. मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ. सपोज मैंने वे बैक आई डिड अ वेरी गुड अपील फॉर अ क्लाइंट एंड से ह्यूज सेविंग, से फॉर एग्जांपल 50 करोड़ की सेविंग है उसको, वो अपील में जीत के आया. मेरे यहाँ पे पहले बिलिंग उसका 6 महीना साल भर के बाद में होता था, बिकॉज काम में बिजी थे, बिलिंग का टाइम नहीं था. अगर मैं बिलिंग तभी का तभी कर लेता जब वो अपील जीत के आया, द क्लाइंट वुड हैव परसीव्ड वैल्यू. आफ्टर 6 months ओनली व्हाट हैपेंस, आप समझो वो 50 करोड़ का उसका सेविंग है, मैंने 1 लाख का बिल रेज किया, जस्ट गिविंग अरे 1 लाख का बिल हो सकता है क्या? इफ द बिलिंग इज आफ्टर 6 months to 1 year, बट द बिलिंग इज इमीडिएट, अरे इससे तो इतना अच्छा सेविंग करके फट करके पेमेंट कर दो. इट इज कंप्लीटली साइकोलॉजिकल. So don't delay your billing by any reason. You have to change your system in the office. I'm not going to spend time. You decide your man-hour rates. आपको जो भी है, you'll realize that you are charging less than an electrician or a plumber, who are skilled but not as amount of hard work you should have done to get your CA degree. They are not put in that type of. They are skilled definitely. They got more labor skills than us. बट प्लीज़ इंट्रोस्पेक्ट कि वेदर यू शुड बी वॉट. जो आपके यहाँ घर पे प्लम्बर आता है, इलेक्ट्रिशियन है, कितना चार्ज करता है, जो आधा घंटा 1 घंटा काम करता है, कितना लेके जाता है, और आप कितना चार्ज करो, भी अब टाइम और डिसाइड करो. यू डिसाइड आपको जो भी करना. बट एटलीस्ट दिस इज ऑल यू विल क्रिएट एन अवेयरनेस. आई एम नॉट सेइंग यू विल स्टार्ट चार्जिंग इमीडिएटली. आपने डिसाइड किया मेरे को कल से 2000 रुपये पर घंटे का मेरे को चार्ज करना है, यू विल नॉट बी एबल टू रीच इमीडिएटली. और आपको पता चलेगा मेरा अभी चार्ज आउट 100 रुपये है, 500 रुपये है, और मेरे को 2000 तक जाना है. विल क्रिएट एन अवेयरनेस टू गो देयर. यू स्टार्ट रियलाइजिंग वेयर डू यू नीड टू कट टाइम, जो फालतू टाइम जा रहा है क्लाइंट के साथ में, जो भी, हाउ टू इंप्रूव योर बिलिंग कैसे बढ़ानी है, थिंकिंग विल हैपन. आर यू अवेयर दैट इंश्योर्ड की मिनिमम रेट ऑफ स्केल ऑफ फीस है?
हाउ मेनी ऑफ बहुत बड़ी लिमिट है वो कि कम लिमिट है? यू आर नॉट एबल टू चार्ज एज पर दैट लेवल, राइट? बट सपोज आप सूरत इज ऑल्सो नाउ ग्रोन अ लॉट डिपेंडिंग ऑन ईच एरिया. आज आप आई डोंट नो अबाउट सूरत बट इन बॉम्बे इफ आई एम गोइंग टू अ डिफरेंट वेजिटेबल मार्केट प्राइसेस आर सेम. एक मैं कोई मार्केट में जाता हूँ, मेरे को वहाँ पे बिटवीन टू डिफरेंट वेजिटेबल वेंडर्स आई एम नॉट गेटिंग, आर यू गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ प्राइस एट द इन द सेम मार्केट? अलग भाव मिलता है आपको, सेम भाव है. तो आपके यहाँ पे क्यों आप एक जगह पे सूरत में प्रैक्टिस कर रहे हो? वाई शुड अ क्लाइंट कम टू यू से कि आप 10,000 चार्ज करो, दूसरा 5,000 चार्ज कर रहा है? Can't you come together? I have told there are 3-4 study circles now here. Not formally, but informally, can you come together? Have you seen difference of fees between dentists, between eye surgeons? Is that by and large similar? Okay, there are differentiate of fees. Same fees? So vegetable vendor से लेके अगर डॉक्टर्स भी कर अपने यहाँ पे क्यों कोई क्लाइंट आके में बोलता है कि आप फर्स्ट टाइम ये जो मिनिमम तभी इंश्योर का नहीं था, CVO CSO करके बॉम्बे में है. 96 में आई स्पोक इन चेंबूर स्टडी सर्कल एट RRC इन करनाला एंड आई रिकमेंडेड दिस. आफ्टर 3 months एक HC गुप्ता के ही वॉज अ मेंबर ऑफ चेंबूर, ही वॉज अर्लियर रीजनल काउंसिल मेंबर एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम, सर मैंने जो बात की थी कैसे रही? नीलेश बहुत फ़ायदा हो गया. मतलब क्या हुआ सर? ये जो तुमने मिनिमम रिकमेंडेड फीस जो CSO ने किया था मैंने मेरे टेबल के नीचे रख दिया है. कोई भी क्लाइंट मेरे से आर्ग्यू करने आता है फीस कम करने होता है, ये हमारे एसोसिएशन के दौरान है. इट इज साइकोलॉजिकल, इट्स कंप्लीटली साइकोलॉजिकल. तो आप जो इंस्टीट्यूट के जो मैनर रेट्स हैं आप नीचे रख के हाउ यू डील विथ पीपल. ब्रेकअप ऑफ ऑल सर्विसेज रेंडर्ड वी डिस्कस्ड. Make as exhaustive, raise the bill immediately, monitor outstanding bills. How many of you get your fees after a year, audit fees वगैरह? Why should that happen? We used to have the same thing. हमारे तो सालों साल नहीं आती थी. मैं आपको फैमिली की बात करूँ, क्लाइंट बोलते हैं आप फैमिली मेंबर है. We had a set of clients, one set of particular client who was a very big client of us when our firm was started or was a pillar. They were into cotton trade. फिर 1974 नेशनलाइजेशन हुई तो उनको बहुत सारे उनके पैसे अटके टेक्सटाइल मिल में बॉम्बे के. वी वर डूइंग ऑडिट ऑफ द नंबर ऑफ कंपनीज, ये वो टैक्स वगैरह. मेरे को याद है खाली बिल वो जो मिनिमम इंस्टीट्यूट की फ़ी होती है, देयर इज़ अ फ़ी. आप 4 पार्टनर फॉर्म हो, 6 पार्टनर फॉर्म है, 2,000 5,000 वॉट एवर इज. वी जस्ट यूज टू प्रोवाइड. कभी हम लोग मांगते भी नहीं थे बिकॉज वी हैड दी ग्रैटिट्यूड कि हमारे वो बड़े क्लाइंट स्टार्टिंग में दे सपोर्ट दिस फर्म. 15-20 साल के बाद 15 साल तक हमने फ़ी मांगी नहीं उनसे बिकॉज खुद डिफिकल्टी में थे. 15 साल के बाद उन्होंने कोई ज़मीन भी, चांदीवली में ज़मीन थी जो पौई चांदीवली के पास, एंड दे केम टू अस कि भाई अभी आप हमने वो ज़मीन बेच दी, पैसा आ गया, वी वांट टू पे यू. एंड यू नो व्हाट दे आस्क, ये फीस तो बहुत ज़्यादा है आपको. हमको 15 साल तक जिसको हमने चार्ज नहीं किया. हम लोग फैमिली मेम्बर्स हैं, लाइक अपने ग्रेटिट्यूड है, सब कुछ है. दिस इज द डिफरेंस. आप अगर फैमिली मेम्बर हो तो वाई द फैमिली मेम्बर शुड नॉट पे यू इफ इज अ बिजनेसमैन. इफ यू आर लाइक अ फैमिली टू हिम, तो फैमिली से खाली बातों के लिए है या it is actually getting translated into, so please bear that in mind and I'm giving you a live example कि this is what is made a family. कोई हमको हम बंदूक नहीं उसके सामने, बिकॉज हम लोग को अभी भी आज वो गर्व है कि वो उन्होंने हमको सपोर्ट किया है. ग्रैटिट्यूड है, लाइफ में ग्रैटिट्यूड होनी चाहिए. वी डोंट मेंबर दिस इज द जनरल ह्यूमन माइंडसेट. आउटस्टैंडिंग बिल में हमारा खुद कैसे बोलते, हम लोग यहाँ भी 6-6 महीना साल तक हम बॉदर ही नहीं करते. जब भी आए तभी ठीक है. From around again 1990, after I started speaking on this, we started एक ऑफिस में खाली एक लड़की को लगा दिया BCom. आप फॉलोअप करो. I'll tell you, we went in accrual system in 2017 or 18, मुझे याद नहीं है, 2016-17 हम लोग accrual से क्यों TDS रिकन से GST हेडेक है. तो उसका फायदा क्या हुआ? फर्स्ट ईयर ऑफ वी वेंट इनटू accrual, what was the outstanding fees at the year end? Any guesses? Any guesses? 0 तो नहीं हो सकता है सर. 2%. आज के तारीख में March 22 is around 5 to 7% because one real estate client has got a liquidity problem, so we are giving him some. Otherwise 30 to 45 days में we are reckoning maximum. फीस चार्ज होती, बिल होता है बाय एंड लार्ज. ऑफकोर्स आजकल तो यूडेन ये वो काफ़ी ज़्यादा झमेला हो गया, मतलब काम होने के बाद में भी. आफ्टर दैट फॉलोअप स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर अ वीक. दैट पर्सन हुज हैंडलिंग द बिलिंग विल सेंड अ रिमाइंडर. 15 दिन के बाद में नहीं, इट विल गो टू द पार्टनर. ये वो इफेक्टिवली 30 से 45 डेज के बीच में
सब रिकवरी हो जाती है। क्यों? और वो देने को, क्लाइंट भी देने को तैयार है, वो अपनी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम लाइज विद अस, नॉट विद द क्लाइंट, बिलीव मी। इफ यू हैव रेंडर्ड द सर्विस, व्हाई शुड बी गेटिंग अ फीस इन टाइम? आपका मेहनत लग गया, टाइम लग गया, लोगों का टाइम लग गया, सो प्लीज चेंज दी हैबिट। इट्स अ हैबिट चेंज मैटर एंड वी हैव डन इट। अगेन मैं आपको कोरा प्रीच नहीं कर रहा हूँ, करके बाद में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। कोई फर्क क्लाइंट को कोई 5-25,000, 50,000, लाख, 2 लाख सूरत जैसे जगह में उनको कोई फर्क ही नहीं गिरता है। इट्स चिकन फीड फॉर देम। अपन ने बिगाड़ के रखा है उनको। मैं तो आई एम वेरी क्लियर, वी हैव स्पॉइल्ड देम। सो स्टार्ट चेंजिंग। ऑफिस में लगा दो और अपने अच्छे तरह से काम करना है। अपने वो गाली गलौच नहीं करनी है। स्वीट टॉक कोई लड़की को लगा दो कि भी वो फॉलोअप करे, उसके अकाउंटेंट से, खुद से, सेठ से, डू दैट। ट्राई एंड प्रोवाइड वैल्यू एडिशन टू क्लाइंट्स। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग मच मोर टाइम। क्या करें? आप ऑडिट भी करते हो, आप सुझाव काफ़ी देते हो। ऑडिट करने वाले जो भी आपको दिखता है क्लाइंट में, डू यू गिव एडवाइस टू देम? आपकी मीटिंग होती है प्रोमोटर से, डायरेक्टर से, आप ओरली बोल के चले जाते हो? जस्ट ट्राई डॉक्यूमेंटिंग दैट एंड सेंडिंग अ नोट टू देम। अगर अनऑफिशियल चीज़ नहीं हो तो जो आप लिख सकते हो, जो आपने ओरली बोला है उसको लिख के क्लाइंट को ईमेल भेज दो। इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ऑडिट जैसे ऑडिट है, भले आपने ट्रू एंड फेयर व्यू सही कर लिया, देयर आर लॉट ऑफ सजेशंस यू कम अक्रॉस, कॉस्ट रिडक्शन, कंट्रोल इंप्रूवमेंट्स, व्हाटएवर कम्स टू योर नोटिस, जस्ट डॉक्यूमेंटेड एंड सेंड। उसको एक पेपर ईमेल करके भेज दो। हाँ, अनऑफिशियल चीज़ मत लिखना, जो आगे तकलीफ, आपको भी तकलीफ, उसको भी वो चीज़ नहीं, पर जो चीज़ लिख सकते हो लिख के भेजो। ऐसी डिफरेंस। सेम वे इन टैक्स। I think I'll close that. There are a lot of things to speak, but sorry. Chalo. So Ingrid, sorry. Then I will. See, एक तो अपन ने पैसे की बात की, but understand service first attitude. People with a money first attitude become so money conscious that they forget money cannot be harvested unless they plant the seeds that grow the money. And the seed of money for us is service. That is why put service first in an attitude which creates wealth. Put service first and money takes off. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ अगेन हमारा ही। 1999 one client approached us. He wanted help in setting up this ERP. ट्रांसपोर्ट कंपनी थी जहाँ पे ड्राइवरों के साथ रोज गाली गलौज से काम करना पड़ता है। They wanted to set up an ERP. They didn't appoint us for the ERP, but ERP लगाने के बाद में उनको तकलीफ हो रही थी. It was not giving the desired result. They asked us, you review the ERP for a firm. It was the first time we were doing that job. हमने उनको कोड किया हम लोग 4 लाख चार्ज करेंगे। वे बैक इन 99 4 महीने का हमने एस्टिमेट दिया, 4 लाख हम लोग चार्ज करेंगे 99 में। काम करते गए, हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम था। 4 महीने खत्म होने, माई टीम केम बैक टू मी, आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। नीलेश भाई यहाँ पे तो हमको मंजिल ही नहीं दिख रही और कितना टाइम जाने वाला है, 4 महीना खत्म होने को आया है, क्या करें? मतलब चुपचाप काम करो। मैंने 25 तक एडवांस लिया, लाख रुपये एडवांस ले लिया था। मतलब चुपचाप काम करो, लेट अस फर्स्ट कंप्लीट एंड देन विल टॉक। तो हमने वो 4 महीने के हमको 8 महीने लगे, 8 months टू रिव्यू एन ERP एंड गिव देम सजेशन, जो बॉटलनेक्स थे, कैसे बॉटलनेक को सॉल्व करना है। प्रेजेंटेशन, क्लाइंट वॉज वेरी हैप्पी 8 महीने के बाद में। एंड क्लाइंट वॉज सीइंग अस कि हम लोग दिन रात मतलब मेहनत कर रहे थे, देख रहे थे, काम कर रहे थे, ऐसे आइडल बैठे नहीं थे। काम खत्म हो गया, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट वॉज वेरी हैप्पी। फिर मैं जाके, आई कैन नेम द कंपनी ऑल्सो, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। आई एम ऑन द बोर्ड नाउ। अभी 1 महीने पहले आई जॉइन द बोर्ड। आई टोल्ड शशि शेट्टी इज द प्रोमोटर, शशि ये हमने हमारे लिए पहला टाइम मैंने काम कर रहा था, 4 महीने का था, 8 महीना हो गया। मेरे को 8 लाख चार्ज नहीं करने, उससे 5.25 या 5.5 लाख, फॉरगेट से 5.5 लाख रुपीज़ मेरे को मेरे खाली कॉस्ट रिकवर करनी है। 1 सेकंड उसने झिझक नहीं। ये सीन के काम जो हो रहा है, भले 8 महीने लगे, जो भी हुआ, एंड इट वॉज एडिंग वैल्यू टू हिम। तो दिस इज सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। एक टाइम ने काम ले लिया, फिर उसमें कोई करकसर नहीं करना है। अपने होता क्या, CAG का काम आ रहा है, साली छोटी फी, अपन उसको ध्यान ही नहीं देते, ले लेते हैं छोटी फीस वाला काम। एक टाइम आपने ले लिया, कम है या ज़्यादा है, प्लीज़ गिव गुड सर्विस। वो नाम खराब मत करना, आपका खुद का भी और प्रोफेशन का भी। या तो लो मत, आप लेते हो तो डन डू द डिलीवरी। जस्ट ट्राइंग टू सी विच ऑल पॉइंट्स आई जस्ट फोकस ऑन। डेलीगेशन ऑफ वर्क में बात की, प्लीज़ डेलीगेट, भले वो 90% काम हो या 95% हो, आपके जितना परफेक्ट काम नहीं हो। रेवेन्यू लीकेज इज अवॉइड। वी आर ओल्ड फॉर्म। बिफोर वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दीज आइडियाज़, काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स चले गए, पता ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है हमारा खुद का, बिलिंग ही नहीं हुई। आपके यहाँ अगर हो रहा होगा, आई होप यू आर मच मोर कंट्रोल देन अस एज अ फर्म, बेटर कंट्रोल्स, बट बाई चांस सी द रेवेन्यू लीकेजेस, ओरल एडवाइस ऑन फोन, ये वो, स्टार्ट चार्जिंग। डू प्रॉपर क्लाइंट अप्रेजल वेदर हिज एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फी। विलिंगनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और काम का बहुत अच्छे से एनालिसिस करो, लेने नए काम का, रेगुलर काम तो पता है. एंड आई अगेन शेयर वन एग्जांपल. रिजर्व बैंक approached us 20-25 years back to do internal audit of their main office in Fort, Amar Building or plus उधर का. We spent 2 days to analyze the work. तभी पूरा उनका they were not fully online. कंप्यूटर्स थे बट स्टैंड अलोन. तो 10 बजे समझो ऑफिस चालू होती है, तो काफ़ी सारे रजिस्टर, प्यून आएगा 10:30 बजे आपको रजिस्टर मिलेंगे, 5:30-6 बजे बंद हो रहा है, तो 5 बजे से दे स्टार्ट टेकिंग द रजिस्टर्स बैक. We did a complete time and motion study and we quoted them 1,25,000 per month for that assignment. It went to another mid-sized firm. कितनी फी? 45,000. ठीक है गई. वो जो पार्टनर हैंडल कर रहा था, मैं उसको मेट हिम एट द भावनगर एयरपोर्ट आफ्टर फ्यू ईयर्स में. सो एंड सो केम चाले છે ઓલું કામ? ગુજરાતી थे. નીલેશ હું આ વાળ ખેંચી રહ્યો છું. What happened? Because they had not estimated the work involved properly, they had quoted. So do proper analysis. ऑफिस टाइमिंग, मतलब कभी वो क्लाइंट का प्रायर इसमें. दूसरा, आपने जो भी काम है उसको आप सिस्टमाइज कर लो. एंड आई विल गिव अगेन माय ओन एग्जांपल, बाकी लोग छोड़ो. आई यूज्ड टू रिव्यू ऑडिट्स इन माय ऑफिस पहले. तो आई यूज्ड टू गेट अ किक. मैं जो भी कोई बैलेंस शीट लेके आता था इनकम, मैं उसमें काफ़ी वो गलतियाँ निकाल के भेज देता लड़के को. आज मैं अगर मैं हाइंडसाइट में उसको देखता हूँ, 90% ऑफ टाइम दी ऑब्जर्वेशन सिमिलर. वो क्वांटिटी टैली मैच नहीं हो रहा है, जो नोट्स के अंदर है. सेल्स जो पीछे फिगर नोट्स के अंदर यहाँ से मैच नहीं हो रहा है. क्वांटिटी, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स इज नॉट क्लोजिंग. टिपिकल जो गलती लोग करते हैं. हैड आई जस्ट सिस्टमाइज दैट, मैं ये पहले से चेक करके आ जाता, मेरा टाइम कितना कम हो जाता. तो आप देखो आपके काम में, आप जो रोज काम कर रहे हो, कितना काम आप डॉक्यूमेंट करके बच्चों को दे दो, जो भी है आपके, कि ये करके ही लेके आना. जो आप गलतियाँ निकालते हो वो पहले से गलती निकल के आ जाए, तो उतना टाइम आपका कम जाए. तो सिस्टमाइज द वर्क प्रोसीजर्स इन राइटिंग एंड गिव इट. एडवांस पेमेंट की बात कर ली, ऑफिस कल्चर की बात कर ली, टेक्नोलॉजी की बात कर ली. आज सब जगह चैलेंज है कि लोग को जैसे क्लाइंट बड़े होते, बड़े फर्म के पास जाना हो, उनको आप क्या बताओ. सपोज आई एम अ सोल प्रोपराइटर, व्हाट इज योर यूएसपी एज कंपेयर टू अ लार्ज फर्म. लोग बोलते हैं ना कि मेरे को तो बड़े फर्म के पास जाना है. व्हाट इज द यूएसपी फॉर यू एज अ सोल प्रोपराइटर? कैन एनीबडी फॉर योर ओन मार्केटिंग, योर ओन प्रोजेक्शन, व्हाट इज योर यूएसपी? एनीबडी? Sorry? Personal touch. What else? That's not the only thing. That's not the only thing. See, I'll tell you what is the difference. If a client goes to a larger firm, एक बंदा ऑडिट देख रहा होगा, दूसरा टैक्स देगा, तीसरा जीएसटी देख रहा होगा. And that is the way firms become large. They have to specialize. If he is with you, you've got a 360-degree view. You've got a view of GST, you've got a view of income tax, you've got a view of audit. You can give him a holistic advice. That is your USP. जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आए, कोई क्लाइंट बोलेगा कि मेरे को बड़े फर्म के पास जाना है, तो मेरे यहाँ रहोगे तो यूल गेट 360 डिग्री. वहाँ पे आपके पास ऑडिट, और वो भी मेनी फर्म्स देयर अ प्रॉब्लम इन द कोऑर्डिनेशन ऑल्सो बिटवीन ऑडिट एंड टैक्स एंड जीएसटी. लार्ज स्पेशली जो बड़े बड़े फर्म्स है, और लोगों का दिमाग खराब हो जाता है वो कोऑर्डिनेशन में ही. सो दैट्स योर यूएसपी. हाउ मेनी ऑफ आप ऑडिट में एंगेजमेंट लेटर देते हो कि नहीं? वो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑडिट, एंगेजमेंट लेटर इशू करते हो कि नहीं? आई एम सीइंग फ्यू हैंड्स रेजिंग. करो. एंड आई वुड रिकमेंड प्लीज डू फॉर टैक्स ऑल्सो. काफ़ी टाइम आपके साथ आएगा, क्लाइंट बोलेगा मेरे को लमसम फी बोल दो आपको जो चार्ज करना है, राइट? कि मेरे को इनकम टैक्स का तो 50,000 लाख या जो भी है, जीएसटी है तो 50,000 लाख. बट वो 50,000 लाख में क्या कंप्राइज है, प्लीज डॉक्यूमेंट दैट. एंगेजमेंट लेटर कर लो. आई हैड गॉट अ क्लाइंट, एक्सपोर्ट क्लाइंट, गोआर्गम एक्सपोर्टर, जो वो लमसम, एक ही मेरा लमसम वी क्लाइंट था. और एक दिन एक उसको पास ही गॉट अ ईडी नोटिस. क्यों? उन्होंने कुछ लंदन में ब्रांच की थी एक्सपोर्ट के लिए, 500 पाउंड भेजे थे. वो मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि लंदन ब्रांच बंद करना है. उसके भाई एक वहाँ पे सेटल हो गया, उसने प्राइवेट कंपनी चालू कर दी. देन दी एक्सपोर्ट वाज बिटवीन दी इंडियन कंपनी एंड दी. तो ब्रांच में जितना पैसा था, सालों साल बहुत कमाया और बहुत पैसा इंडिया में वापस आया. और उसको तो क्या होता है, जब भी क्लोजर होता है तभी थोड़ी बहुत लाइबिलिटी रहती है, ऑडिट फीस देनी है, बाकी ये वो लाइबिलिटी काफ़ी साल तक बैलेंस शीट में थी. और फाइनली दे डिसाइडेड टू राइट इट बैक. तो दे रोड टू आरबीआई. तो ईडी की नोटिस आई कि यू आर नॉट कंप्लाइड विद दी फेमा वायलेशन. 500,000 पाउंड का मैटर था. क्लाइंट बोला मेरे को उसमें एक पैसा वो आदमी को देना नहीं है, मेरे को लड़ना है. मैटर वेंट इनटू अप टू, उनकी अलग से एक अपीलेट होती है. मैं फॉर एक सेकंड में मैटर उड़ गया वो अपीलेट में. वो बकवास था एकदम. वो जो ईडी का नोटिस ही बकवास था. जो एक्सपोर्टर ने करोड़ों रुपया इंडिया में 90s में, जब इंडिया फॉरेन एक्सचेंज की खामी थी,
एंड आई गॉट इन्वॉल्व राइट फ्रॉम बिगिनिंग, डिजाइनिंग, वो पूरा उसको स्ट्रक्चर करके देना. और फिर जब इसको फीस की बात आई, अरे तो 50,000 लाख के अंदर है, ऑल इंक्लूसिव. अरे मैं कहाँ इनकम टैक्स, कहाँ ये तुम्हारी ईडी और फेमा. तो प्लीज डॉक्यूमेंट द एंगेजमेंट लेटर कि क्या क्या उसके अंदर, भले लमसम फी हो, आइडियली डोंट एग्री फॉर आइडियली पॉसिबल हो तो, बट जस्ट अगर हो तो क्या उसके अंदर कवर होगा. तो कल उठ के और कोई नया मैटर आता है तो यू कैन चार्ज डिफरेंटली फॉर दैट. मेक प्रेजेंटेशन टू द क्लाइंट एज पार्ट ऑफ ए डिलीवरेबल. आप लोग काफ़ी ओरल एडवाइस देते हो, इवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए, वो बच्चे लोग भी विल बी हैप्पी एंड द क्लाइंट ऑल्सो विल बी इम्प्रेस्ड. यूज ऑफ सोशल मीडिया वी डिस्कस, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉरी, आ गया. आई थिंक आई विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन दिस. दिस इंग्रेडिएंट सक्सेसफुल प्रैक्टिस, प्रोटेक्ट योर इंटेंजिबल्स. व्हाट इज द ह्यूमन कैपिटल. लोगों को जितना आप रिटेन करोगे अच्छे तरह से, और उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल. एग्जिस्टिंग गुड क्लाइंट्स, अगर जैसे 80-20 में अगर आपका ध्यान बड़े क्लाइंट पे नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम विच यू आर डूइंग, दैट विल बी रिस्की. क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, योर ओन इन्वेस्टमेंट एंड फंड मैनेजमेंट ऑफ योर ओन फंड्स, नॉलेज स्किल्स यू कीप ऑन एनहांसिंग, प्रोफेशनल नेटवर्क्स वी डिस्कस्ड. हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट है. आप लोग यहाँ पे जो भी हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग सम फिजिकल रेजिमेंट ऑफ वॉकिंग, स्विमिंग, योगा, जिमिंग? काफ़ी लोगों के पास है पर काफ़ी लोगों के पास नहीं है. प्लीज़, अपनी ये प्लांट एंड मशीनरी है, ये ठीक नहीं रहेगी तो आपकी फी अर्निंग कैपेसिटी बंद हो जाएगी. ये प्लांट एंड मशीनरी डाउन होगी, जितने दिन आप बीमार हो आपके अर्निंग जीरो. सो दिस हैज़ टू बी, तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना भी एक काम का पैशन होता है अपने को, जितना मैं ज़्यादा काम करूँ वो पैशन ठीक है, जब तक यंग लाइफ है यू विल बी, योर बॉडी विल बी टू मैनेज, बट उसको ज़्यादा लंबा चलाना है तो इसका मेंटेनेंस ठीक करना पड़ेगा. तो इट हैज़ टू बी गुड. डॉक्यूमेंटेशन वी डिस्कस्ड. This you can see later on. I think I'll request these are the traditional areas and these are the emerging areas. काफ़ी टाइम रोते रहते हैं कि मेरा इनकम टैक्स का तो प्रैक्टिस कम हो रहा है, जीएसटी का कम हो रहा है, बट जो नया आ रहा है उस पर आप ध्यान दो ना. इसमें जो भी आपको चाहिए, देयर इज अ होल बुके. पिकअप वन, इंसॉल्वेंसी कर लो, वैल्यूएशन कर लो. मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, टेक्नोलॉजी वाला जो भी करना है. आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक ऑन दिस. स्पेशलाइज, सी वंस यू स्टार्ट ग्रोइंग, डिसाइड टू स्पेशलाइज. Take team members, एक जन audit, एक जन tax, GST, that will add value. I'm not getting into this. Once you start growing, networking, merger, demerger, technologies, I'm not going to spend time there on. So, what is the qualities of success in the CA firm? For the senior members, this is there. So what does the future hold for us? Traditional practice is losing its relevance. There is a mismatch in demand and supply leading to increase in staff cost. Practice becoming less attractive to newcomers. आपने देखा हो chart. Automation making accountants irrelevant. Knowledge being freely available, role of CA is getting changed. मतलब Google पे सब कुछ available है. So what do we need to take those skills, talent and retention, knowledge, ability, client relations and reputation. ये सब होगा तो ही अपने आगे प्रैक्टिस चलने वाली है. तो क्या हो रहा है अभी? नाउ फ्रॉम व्हाट शुड बी अ विजन फ्रॉम कंप्लायंस टू कंसल्टिंग, वी आर प्रोटेक्टिंग वैल्यू फॉर क्लाइंट. हाउ डू वी एनहांस वैल्यू फॉर क्लाइंट? वैल्यू क्रिएशन. फ्रॉम अ सर्विस प्रोवाइडर टू अ सोल्यूशन प्रोवाइडर. अभी अपन सर्विस प्रोवाइडर है. एंड फ्रॉम साइज टू पोजिशनिंग एज अ प्रैक्टिस. एक तो साइज है, पोजिशनिंग, यू शुड बी राइटली पॉइज्ड. दैट वाज अबाउट इट. सॉरी आई हैव टेकन मच मोर टाइम देन माय ओनली रिक्वेस्ट इज to the branches, you can circulate the presentation if the people want. Please start implementing whatever you like. बाकी नहीं तो कोरा भाषण रह जाएगा, वो मेरा यहाँ आने का मतलब नहीं होगा. जो चीज़ एक और जो भी चीज़ बताई उसमें थोड़ा मतलब, एंड आई एम सेइंग 90% of this is experiential, 10% is friends experience. Like Guru also, we have been interacting. We spoke on the same subject in Ahmedabad, I think many years back. Similarly, the proof of the cake is in eating. Please start implementing, and that will be good for you, good for the profession, and good for the nation. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir,
for discussing a small intricacies of a business and providing us the solution. I'm sure the post-implementation of your wisdom, our practice will definitely reach to new heights. Thank you, sir. For a moment of appreciation, I would like to invite CA Atul Viradia sir, Arun Viradia sir, sorry, to felicitate our past chairman, CA Rupin Pachigar sir, with memento and flowers. I would like to invite CA Dushyant Vitlani sir for vote of thanks. Thank you. Very good afternoon to all. My vote of thanks to the today's learned speaker, CA Nilesh Vikamche sir, past president ICI. Sir, thank you very much for coming to Surat and enlightening the members about the management, about the practice management for CA office and firms. I am quite sure, sir, that your words will be an eye-opener for our National Conference 2022, which will enlighten the members about the upcoming next decade, sir. It will help us. My vote of thanks to our session coordinator, CA Rupin Pachigar, sir, past chairman of Surat branch. Thank you, sir, for coordinating this session. My vote of thanks to the wonderful audience for this first technical session. Thank you very much for your patience listening.